Hello, Hi. am I audible? Uh, Hello. yes, Yeah. I can hear you. Yes. Oh, a little bit. Maybe quality is right now not great, but yeah, it's fine. Okay. Let me switch off my camera because like some electricity issue happened just now. So Okay. let me switch off it, and then my voice would be more clear. No worries. Okay. So I think we should go from the beginning, right? Because Hmm. you did not attend the demo as well, the proper demo which Okay. happens in the beginning. Yeah. Yeah. Chalega. So that should be required. So let me start building basics from there. Yeah, give me a second. तो basically in this course का मतलब what is Mhm, also execution plan के मतलब हम लोग कैसे proceed करेंगे थोड़ा high level वो भी थोड़ा समझा दो in terms of mhm, how we're mhm, planning to cover mhm, topics mhm. AI. हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आपके पास में वो कोर्स का पैम्फलेट क्या है, सिलेबस वाला? Yes, PDF मिला है मुझे पीडीएफ? मनीष. Yeah. हाँ, ठीक है, मैं बता देती हूँ, उसको भी कंसिडर करते हुए सारी चीजें हैं। ठीक है, Yes. बस एक सेकेंड दीजिए, स्लाइड शो पे डाल के मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। Okay. प्रेजेंट। तो आप इंडिया में दिल्ली में बेस्ड हो कहाँ वेयर आर यू बेस्ड? हम लोग नोएडा में ही है काफी टाइम नोएडा. से, ओके. राइट। एंड जस्ट वैसे अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं, ओके. बट काफी देर। या okay, so ऑलराइट. basically in AI ML course, basically this is the demo. So what is AI? We first talk about that. So this is a design of intelligence in an artificial device, right? So designing can happen in any way. अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इन अ मशीन। आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बना देते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार भी एक तरह का इंटेलिजेंस हो गया, थोड़ा हाई लेवल हो गया, राइट? सो बहुत मिनिमल चेंज भी अगर डिवाइस को इंटेलिजेंट बना रहा है, दैट आल्सो कंसिडर्ड अंडर एआई। ओके, ऑलराइट. then we have so many real life examples, so we know already these different products and services offer recommendation systems. आपकी photos को groups and clusters, they automatically do it. Google Map shows the shortest distance, right? राइट. So everyone is using AI in different ways. Recommendation system are quite popular. Then like new summarization was one of them as well. So if we talk about AI landscape, so basically in AI there is a machine learning domain, then inside machine learning there is deep learning, then generative AI is a research field still, and this is getting introduced everywhere in the companies. And then data science is having intersection with all of them, right? So राइट. machine learning may we talk about the statistical and mathematical um, functions, right? So the model is prepared using statistical and mathematical fundamentals, ओके. whereas in deep learning, the model is prepared using neurons. Like it's like brain analogy, and we ओके. use different kind of way to prepare the model, but pipeline is same. You actually take your data, you clean it, you pre-process it, you understand it, then you prepare the model. The model ओके. preparation ways are different, right? गॉट इट. And in Gen AI, so till here, this three blue circles mostly are used for prediction and classification, clustering, like those things. But when generative AI came, it is actually generating new ideas. Till yet, we were predicting. We were saying that okay, in future forecast is this. This could राइट. happen. But generative AI has created it just now. It created new images or created new paragraphs, created new stories based on some
basic questions it asks from you, or Mm. some intent you'll provide it, it will create a new story for you. Then Okay. data science is basically a field which is having intersection with all of them, because data, it talks about data and understanding data, right, and taking the decisions based on data. So data can be of any form. It can be Okay. Hello. Hello. Uh, I can't hear. Hey, Jaya, I can't hear you. हेलो. hello. हाँ, अभी आवाज आ रहा है. I don't know. All this while Okay. last couple of minutes. Yeah. From my side, there's some Yeah. issue. Oh, okay. It's fixed. Okay. Right. You're One talking about second. data science. Yeah. Yeah, I was talking about different kinds of data are possible. Mm. So a data can be of any form, right? Okay, let me present it again. Is my screen visible right now or not? Yeah. Yeah. I can see it. Data Okay. science. Okay. Okay. Then there are different case studies considering different kinds of data and considering different kinds of um, things we can do with AI, right? Mm. It can detect people, it can generate new things, it can detect some specific word context from the paragraphs. So depending upon that, there are so many case studies. So I included 10, around 10 case studies during the demo. So let's talk about first is exploratory data analysis. So Mm-hmm. this is like we are taking Mantra's data where people were purchasing apparels of different kind, men, women. So this is the kind of data set we are talking about: product brand, product name, gender, price, okay, number of images, descriptions, and all. Right. So depending upon this data, there is like different kinds of plots can be prepared, and like previous was a pie chart where it says like who are purchasing more, whether men or women who are purchasing more. So women, usually people say women are more shopaholic, but here if we check the percentages, so men are purchasing more. So these are different data plots which helps us to do prepare reports and to do decision making, right? Okay. So these are different brand charts. That was a scatter plot. This is word cloud, right? So it is prepared using the description. The names which are in the bigger font are the common words which are coming in the description, right? So it is Right. automatically generated using first we pass the data using pandas, and then a word cloud is generated using matplotlib wrappers, right? So we are going to Okay. study all of these, Yes. Okay. and things like this is the same thing, just this is for bag, it is containing related to bag stuff. Okay, then there is a second case study which talks about object detection, right? So object detection means for a self-driving car, or for a cameras which are installed on the roads or somewhere, so they detects the objects, means which are present in the image. So there are algorithms in computer vision which helps us, which help those cameras to detect the objects. So basically the fundamental of object detection says that it allows users to identify objects of certain different classes. So this is basically you first define, let's say, 10 number of objects which a camera can identify. Let's say it can identify a dog, a car, a bicycle, a bus, like this. So you've Yeah. defined 10 categories. So it's a kind of supervised learning algorithm because you have defined the 10 categories and you have labels of them, and then on supplying the picture completely, it can detect those objects in the image, and it puts a bounding box around the object and labels them on the detected, means labels them, right? So
basically this kind of fundamental happens. So first thing is, like, in the whole image it can identify this cat and put a box around it. So what the output will be containing, it's containing basically the coordinates of x y, means x1 x2 y1 y2, all of the coordinates. Means there are four: x1 x2 x3 x4, then y1 y2 y3 y4, and the name and its confidence score, how much the algorithm is confident whether it's cat or Right. not. So it's 100% confident right now. Okay. And there is different like ready-made recipes which are prepared using Hugging Face is a community which provides so many algorithms which are already implemented. And what happens in projects in the companies, they usually use those, and if they want to improve, they improve over them. They do not start from scratch, right? So there was a live example of it. Right now I'm not going into it because we Mm. have to cover the studies class as well, Yeah. the day Yeah. before yesterday, right? Okay, so then this is the example of name reality recognition. So this is one of the important things if you are more interested in natural language processing. So basically, the primary goal of NER is to extract meaningful information from unstructured text. What is unstructured text? That is a paragraph, a document, complete book, pages. So that is unstructured thing by identifying and classifying entities into categories. So in the previous example, we were looking into the picture, the bounding box in the whole picture. Whereas in NER, we look at the different words present in any sentence. So it Mm. can identify whether that word is a name of a company, whether that word is a area, or maybe a name of a country, right? So these things it can identify from the complete sentence, like it misses out the or the verbs, like those things. Okay. Means proper nouns, it can identify Mm. proper nouns. Okay, so NLP tasks such as information retrieval, question answering, sentiment analysis, so there it is very helpful. Mm. So okay, and do This you want to is where see do you its see this demo? use case for that? Like Sorry. that, where do you see that use case? Like in actual usage, like across, where do Sentiment you? Mm. analysis and all. Okay, sentiment analysis means basically if there are movie reviews provided by people and you just scrape the data of Right. that kind of Okay. reviews, so you want to identify who is the director, who has Ah, okay. prepared the Okay. It could be like name of, Amazon yeah, reviews or something. Got it. yes, Yeah. yes, Okay. yes, that, Okay. that product name and all. Mm. So that can be there, it is helpful. Okay, can you see this collab Yes. right now? Yes. I can see. Yeah. Really? Okay, so this is NR demo, and here Yeah. basically this is an algorithm, and here it is able to identify 2018 as date. And so we have provided this text. This Baidu's Apollo project is one of the world Okay. leading autonomous driving and AI programs like this. Yeah. So, and NLTK is another library which also provide NER module. So Hmm. here we see the same thing, but it is actually maintaining in a different way. The output is bit different from the previous one. Right? So it talks about organization, small capital letters. Just a font is different, but information is kind of same. Right, then the Spacey is another library. So we have so many libraries and modules provided by Python. So they are enormous, but Mm. there are some which are mostly used. So basically, in this course, we will explore which are widely used, but there Mm-hmm. are specific modules for specific needs. So that is basically a exploration thing. When you get some project, you explore, okay, whatever the options available, but the way to understand them is kind of same, the fundamental is same, right? Okay. So here also we have org in the form of orgs 2018 is date. So like this it can detect more related in comparison to this, right? Mm. So to the algorithm basically depends on the algorithm that how you can get the output. Okay, then next use case is case history for So text every to of image those classification. libraries like a different algorithm, is it? Yes. Oh, okay. So the
different persons build them, so they have different mindsets. But they have maybe they one person came and they added some of their recipe in it, right? So you Hmm. added some Okay. of your mathematical operations, some more, Right. some more. So this way they are Yeah. different. Okay. So it's a kind of research happened over a period of time. Then text to image methods. So in computer vision, we have different models, and means they can understand the text and can generate the image. So basically, so here one example of it. So very latest model which are coming from GenAI, they are diffusion models. So if you write any text here, let's say a baby on moon, right? I'll click on compute. Yes. So here you can see Right. something. So every time you click on compute, it will generate a new image. Ah, okay. Okay, so this is actually Hugging Face. So it's just scraping what data? I mean, it has all of its data set already there. It just goes through it Uh, and it makes it right Right, image. right, Okay. right. But not every algorithm is supervised learning one. So diffusion models are based on GANs, generative adversarial networks. So they are Mm-hmm. different on different approach they works. But basically, here they starts from the noise. Let me tell you how noise looks like. Have you seen? आप तो काफी पहले से हैं. So you have Hmm. seen in India there is like बहुत पहले जमाने में हमारे जो हाँ टीवी होते डॉट थे हाँ उसमें हाँ जो समझ ब्लैक, गया मैं हाँ हाँ हाँ, हाँ that is the समझ गया noise, right? And हम्म, from that noise it actually takes the original image and tries to compare that noise with the image, and that's how it generates new ideas. ओके ओके Okay. And first it cool takes these words, and depending हम्म, upon the picks the images and just हम्म, merge their features and then creates an हम्म, image, ओके right? So this is what it is. Okay, there are more in different slide, I think. uh this one. Okay, already 251 is here. हम्म, Okay, so I think these are enough. Let's हम्म, focus more on the lecture. There are more like yeah face landmark detection, skin lesion detection, हम्म, detection of objects. So this I've already told you. And then this is segmentation. Segmentation means separating background pixels from the foreground objects. So it's like removing the your background. okay You're only there. Like in right iPhone, etc. You have this feature, right? हम्म, You can copy the object, yeah whatever you select. So text generations and इसका all. पीडीएफ है आपके पास just to go through this later if I want to नहीं, अब PDF नहीं है. This is our demo lecture, so हम ये share भी नहीं करते हैं. अच्छा ठीक है. just to know these applications but yeah that's fine Okay. So in Amazon as well, ये applications आपको recording में मिल जाएंगे. Recording on है. okay ठीक है. And then lang chains and all जो recent topics हैं, so ये सारे भी हम cover करेंगे. अब कितना डेप्थ में कर पाते हैं दैट टोटली डिपेंड्स कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद कितना टाइम बचता है, बट आई ट्राई टू कवर एज मच एज हम्म, पॉसिबल. हम्म, ओके, अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे. मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ. तो जैसे भी ये वाला मंथ में हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, सो बेसिकली हम मंथ वाइज जो भी प्लान होएगा ना उसको शेयर करते जाएंगे, हम्म, ट्रैक करते हुए. बाकी चलेगा हमारा वही पीडीएफ जो आपसे शेयर हुआ है उसी बेसिस पे. yeah सो तो और कोई अलग से लिटरेचर है जहाँ पे we should go and read something reference हाँ, materials मैं ऐसे बुक्स हाँ की मैंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स एलएमएस पे शेयर किया हुआ है. आप ओके एक बार वहां से जाके रेफर कर लीजिएगा. काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, मतलब, राइट और लेक्चर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे भी, यूट्यूब वगैरह पे. तो वहां से भी स्टडी कर सकते हैं. पर मैंने बुक्स का रेफरेंस दिया है क्योंकि वो ज्यादा या सही रहती हैं. ठीक राइट
ओके, रोड मैप टू कवर कंप्लीट सिलेबस। सो ये हमने देखा था क्या कल? आपने मतलब ये नहीं देखा नहीं है क्या? नहीं, नहीं नहीं। नहीं नो। नहीं देखा है। ओके, सो बेसिकली इन मंथ वन वी विल अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड पाइथन बेसिक्स, ओके। एंड देन वी विल मूव टू डेटा मैनिपुलेशन विद पाइथन लाइब्रेरी। सो यहाँ पर वो हम पेयर प्लॉट वगैरह जो देख रहे थे हम्म। उनको अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब उससे पहले हमें नंपाई और पांडास भी समझने पड़ेंगे कि ठीक है। पांडास इज यूज्ड फॉर बेसिकली स्टैटिस्टिकल, हम्म। मतलब means loading CSV files and all, and provide and doing some statistical operations, grouping, merging, like this। ओके। आपके पास 3-4 एक्सेल शीट्स आ गए हैं, राइट? अब आपके पास डेटा आता जा रहा है हर मंथ वाइज, तो आपको उन्हें ग्रुप करके मर्ज करके तब रिजल्ट निकालने हैं, जो हम सब काम एसक्यूएल में करते थे, माई एसक्यूएल को यूज करके। हम्म। उसी तरीके की चीजें पांडास के साथ भी अवेलेबल है। इट्स अ काइंड ऑफ रैपर ओवर एसक्यूएल। ओके, राइट। देन ओके। numpy जो है वो एक लाइब्रेरी है दैट इज यूज्ड फॉर लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड ऑपरेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, जितने भी मैथमेटिकल डीप ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए numpy में हमारे पास रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। आप जस्ट वो फंक्शन कॉल करिए, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। सो देयर आर द लिन एग इज अ लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल है उसका, numpy का मॉड्यूल है, एंड बस उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें इस बेसिक से कोड नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो फर्स्ट मंथ में हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। सो वही सारे प्लॉटिंग वगैरह, अंडरस्टैंडिंग। देन सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन, देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन। सो इसमें रिग्रेशन जैसे हमने कल भी पढ़ा था और उसमें मैंने बस कोड वॉक थ्रू किया था, बट रिग्रेशन का एक्चुअल मैथमेटिक्स थोड़ा डीप है। राइट। किस तरीके से अब वो एक जो लाइन फिट होके, आज में हम लाइन पे बात करने वाले हैं आज की क्लास में, तो किस तरह से वो लाइन फिट होके आती है, वो उसके मैथमेटिकल फंडम क्या बेसिस है, तो वो सारा कवर करते हुए फिर हम उस पे केस स्टडी करेंगे अदर देन हाउसिंग प्राइस, राइट? देन सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन में भी इसका भी फंडामेंटल थोड़ा अलग है, और क्लासिफिकेशन की करीब 7-8 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जो जो पता होनी चाहिए, तो वो सारी कवर करेंगे। देन अनसुपरवाइज लर्निंग में हम बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह कवर करेंगे। देन आ जाता है वील ट्राई टू कवर डायमेंशनलिटी रिडक्शन एज वेल, पीसीए भी कवर करेंगे। एंड देन डीप लर्निंग फिर हम आ जाएंगे। डीप लर्निंग फंडामेंटल्स में हमारे न्यूरल नेटवर्क्स आ जाएंगे, ये मंथ 4 में स्टार्ट होएगा। दैट हम्म। comprises of keras, tensorflow, pytorch। so keras बेसिकली हम देखेंगे दैट इज अ रैपर ओवर टेंसरफ्लो, और pytorch देखेंगे क्योंकि अब ज्यादातर एप्लीकेशंस जो बिल्ड हो रहे हैं वो pytorch को यूज करके हो रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट ओके। वगैरह कैसे क्रिएट करना है यूजिंग पाइथन एनवायरनमेंट, पोएट्री एनवायरनमेंट, बहुत सारे टाइप की लाइब्रेरीज हैं वो आपके आपके बेस इंस्टॉलेशन को अलग रखती हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड इंस्टॉलेशन से। वो सारी चीजें हम्म। देखेंगे। डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे जो कि अभी आपने डेमो में देखे थे, राइट? उस तरीके के राइट। यूजिंग प्रीवियस मॉडल्स, और प्रीवियस मॉडल्स में कुछ चेंज करके हम अपना कोई कस्टम लेयर ऐड करके मॉडल को फिर से ट्रेन करना, फाइन ट्यून करना, तो वो सारी चीजें। देन आ जाता है, अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि एनएलपी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कंप्यूटर विजन सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ 5 में। तब तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको हम्म। क्या क्या चीज पे ज्यादा परस्यू करना है, राइट? सो या तो हम एनएलपी साइड जा सकते हैं या फिर हम कंप्यूटर विजन साइड जा सकते हैं, क्योंकि एआई की दो ब्रॉड हम्म। ब्रांचेस हैं। इतना तो सबको आना ही चाहिए मंथ 4 तक हम्म। जो है, अगर आप एआईएमएल एक्सपर्ट है। मंथ हम्म। 5 से आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। अब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डीप में पढ़ना चाहते हैं, एनएलपी को पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर विजन को डीप में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा ओके। बहुत तो सब आना चाहिए। बाकी अब हम्म। किस में डीप में जाना है वो डिपेंड करता है आप रिसेंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है, देन फिर मॉडल डिप्लॉयमेंट ऑन एश्योर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी। तो हम, मेरा एश्योर पे सर्टिफिकेशन है और एडब्ल्यूएस पे, जीसीपी पे मेरा सर्टिफिकेशन नहीं है। आई ट्राई टू डू टिल दैट टाइम, राइट? ओके। एंड एटलीस्ट हम एक दो क्लाउड पे भी देख लेंगे, तो तीसरा कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। देन थर्ड इज बिग डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो फिर बिग डेटा के बारे में भी थोड़ा हडूप वगैरह को भी समझेंगे मंथ 6 में। ओके। तो यहाँ पर तो हमारा जाके तो फाइनल हो जाएगा। चेन नया कहाँ पे आता है? चेन नया जेन एनएलपी एआई में? आपका एनएलपी का ओके। ब्रॉडर, एनएलपी का ही एडवांस वर्जन है। ओके। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो एनएलटी के स्पेस ही से स्टार्ट होता है, और फिर हम्म। वो लामा, लैंचेन, रैग, ये सारे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जेन एआई में। ओके। ओके। तो हम ये वाला जो मंथ 5 वाला मॉड्यूल है ना, या सो इसको, इट ये दिस इज लुक्स लाइक काफी कस्टमाइजेबल। मतलब फास्ट पेस भी है, तो काफी मतलब
साथ में हाँ, you had हमें to काफी सारी study and चीजें कवर करनी है, तो हमारा okay. बेसिक जो है ना, बस यहाँ पे मैं मंथ 1 में थोड़ा धीरे चल के बेसिक्स बिल्ड Hmm. कर रहे हैं हम। Hmm. मंथ 2 तक भी हमारा थोड़ा धीरे चलेगा, उसके बाद स्पीड पकड़ लेगा। Okay. क्योंकि हमारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, अगर हमने सुपरवाइज लर्निंग का रिग्रेशन बहुत So you are अच्छे से going पढ़ to लिया। also मतलब हम्म, साथ के साथ मतलब कोई टास्क होंगे जो हम करेंगे हाँ हाँ हाँ, लैब्स होंगे, ओके टास्क होंगे, ओके क्विज होंगे। ओके सो सारी चीजें होंगी। ओके ऑल गुड ओके। अभी मुझे लग रहा है बाकी लोग का ज्वाइन करने का टाइम हो गया, अगर कोई ज्वाइन कर यस लिया है तो उसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अभी ठीक मंथ वाला अपना थोड़ा सा रह गया है, हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से कल भी एक आधा घंटा उन्होंने बोला था कर सकते हैं हाँ, कर सकते हैं। यस, अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है, तो हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं मनीष के घर पे आया हूँ तो ही इज आउटसाइड अच्छा अच्छा। ओके। मे बी आई कैन कॉल हिम ओ, अगर ओके ओके, ठीक है, आप कॉल कर लीजिए। एक मिनट शुरू के 5 मिनट वो लोग जब तक सेट होंगे, वी कैन डिस्कस सम थिंग्स। या हाँ, सो आर यू कॉलिंग हिम? मैं अभी रुक जाऊं या फिर मैं स्टार्ट करूं? सॉरी हाँ अभी आ रहे हो ज्वाइन कर रहे ओके। सो इसमें हमारा पाइथन भी रहेगा, जैसे वीक 1 और 2 का मैंने यहाँ पर एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ था, टेबल। सो हम इसमें मशीन लर्निंग का ये सारा टर्मिनोलॉजी हमारा चल ही रहा है अभी। अब हमारा पाइथन बेसिक्स चलेगा 1-2 दिन। आपका पाइथन आपने किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ पाइथन है? का मैं हाँ मतलब आई हैव एक्चुअली थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है मैंने तो आई नो ओके दो पाइथन स्क्रिप्ट भी बनाए हैं ऐसे मतलब एडवांस अच्छा। नॉलेज नहीं है बट आई थिंक आई डू हैव ओके, बेसिक तो फ्रेमवर्क नॉलेज हम यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं जाएंगे। हम ओके इतना समझ लेंगे जितना हमारे काम का है, मॉड्यूल्स वगैरह तक हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि मॉड्यूल्स इंपोर्ट वगैरह कैसे करने हैं, हाँ वो बाकी ठीक है वो बेसिक दैट्स सारा आना चाहिए, राइट? हाँ तो आई थिंक वहां तक दैट्स ही कवर अंडरस्टैंडिंग कर। प्रॉब्लम ओके या हाँ, तो मतलब आगे की 1 या 2 दिन की क्लास थोड़ी सी इजी रहेगी, अगर पाइथन का आइडिया है तो। श्योर वो छोड़ भी नहीं सकते हैं ना, तो उसको कवर करके नहीं दैट्स फाइन चलेंगे। आई थिंक इट्स मोर अबाउट जो नए देन मॉड्यूल्स पे या देन वीक 3 एंड 4 में हम बेसिकली नमपाई और पांडास पे ज्यादा फोकस रखेंगे। एंड किसी ने ज्वाइन किया, मनीष ने। एंड आफ्टर दैट, हाँ, तो अब यहाँ से हमारा फर्स्ट डे का लेक्चर था, तो अभी मैं स्टार्ट करूँ या कल करना है? वी कैन गो हाय मनीष, सारे एक ही जगह हैं आज। आई कैन Yeah, सी प्रेम एज वेल। हाय प्रेम। I'm here as well. ओह वाओ, all students at one place. और नौजवान करेंगे बच्चे नॉइस करेंगे अमित तुम्हें दिख रहा है यू कैन डिस्कनेक्ट आपको दिख रहा है मैं लॉगिन कर लूंगा अरुण तो ऐसा करते ये दिख रहा है और गुड ओके, लेट्स कंटिन्यू। जो हमारा कल वाला लेक्चर था, अभी वहां से कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में कोई डाउट था? एक बार क्विकली रीकैप कर ले 2 मिनट्स रीकैप ओके श्योर। सो 2 मिनट्स रिकैप के लिए मुझे फिर से स्लाइड शो पीपीटी का करना होगा। 1 सेकेंड। So recap was like this. Yeah. So housing price यूज केस से हमने स्टार्ट किया था, देन वी अंडरस्टूड। उसके पहले हमारी क्या थी, वो मशीन लर्निंग का प्रोसेस था, राइट? देन उसके बाद में हमने हाउसिंग प्राइस यूज केस से मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ऑन हाँ है। है
ठीक है एंड ओके देन इसमें हमने मॉडल डेफिनेशन को समझा था व्हाट इज मॉडल व्हाट इज ट्रेनिंग दिस प्रेडिक्शन देन फीचर देन लेबल देन ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग देन जनरलाइजेशन सो ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग को हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था मॉडल बहुत सिंपल होता है तो अंडरफिटिंग होता है मतलब कि डेटा को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया मॉडल एंड देन ओवरफिटिंग कब होता है जब बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर लिया और अभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है मतलब ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बहुत हाई है या जस्ट अ क्विक वन हियर हम अभी ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे फॉर एग्जांपल कल आपने जैसे ड्रॉ करके दिखाया था ओवरफिटिंग के केस में you know the curve was going around the point so that it has actually learned the data than anything else तो हम we were wondering in case of linear regression it has to be anyway a single straight line या overfitting linear regression में अगर हम overfitting करते हैं तो it still has to be a straight line yeah or not किरोड़ अभी नो नो आप सही कह रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में बट लीनियर रिग्रेशन अभी जो आप बात कर रहे हैं वो शायद स्ट्रेट लाइन बनेगी सिंगल वेरिएबल के केस में ना single variable case में अगर एक एक्स है अगर हमारे पास x1 x2 x3 7 8 10 फीचर्स हैं तब भी क्या बनेगा कौन सा कर्व बनेगा हाँ We वो can't मल्टी even- डायमेंशनल हो गया हाँ वो मल्टी हाँ डायमेंशनल हो फिर गया हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कर्व को तो उस नेचर में अगर हम बात करेंगे तो क्या कर्व का सरफेस होगा वो डिस्कस नहीं कर सकते राइट या तो हाँ, उस visualize भी केस नहीं में कर वो सकते। ओवर हाँ Multi-dimensional। विजुलाइज भी नहीं कर सकते हाँ तो ओवर फिटिंग उस केस में क्या करेगा वी कांट से या राइट no that's fine ठीक है अंडर फिटिंग हो गया एंड देन जनरलाइजेशन जब प्रॉपर मॉडल हमारा टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म करता है हाइपर पैरामीटर्स जो मॉडल के अंदर कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिनको ट्यून हम कर सकते हैं लाइक रेडियो में हम ट्यून करते हैं तो उनकी पैरामीटर्स की वैल्यू खुद से डाल के चेंज कर सकते हैं या उसे वेरिएट करा सकते हैं जैसे कि एक यहाँ पे लर्निंग रेट की बात की गई है तो लर्निंग रेट का पैरामीटर हम एक रेंज में वेरिएट कराते हैं 0.0001 से 0.01 तक कुछ ऐसा तो इस तरीके से हम हाइपर पैरामीटर्स फिक्स करते हैं देन लॉस फंक्शन सो बेसिकली लॉस फंक्शन आपका वो कर्व को फाइंड आउट कर्व का नेचर फाइंड आउट करता है उसके लिए हम लॉस फंक्शन को यूज करते हैं और बेसिकली हमने कल इतना जाना था कि हम अगर अपना एक्चुअल डेटा से प्रेडिक्टेड या एस्टिमेशन को माइनस करते हैं तो हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए नियर टू जीरो होनी चाहिए क्योंकि हम हमेशा प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअल के नियरेस्ट ही होगा तो ये था लॉस फंक्शन देन इपॉक था कंप्लीट पास्ट देन बैच था कि सारा एक साथ डेटा सेट में हर सारा पूरा डेटा एक साथ देने की जगह हम उसे थोड़े थोड़े बैचेस में प्रोवाइड करते हैं जिससे लॉस फंक्शन हमारा एक्यूमुलेट और सम होके तब वर्कआउट करता है तो जस्ट अ क्वेश्चन बैच के केस में हम लोग लेट्स से कि डेटा को 20 में डिवाइड करके मॉडल को रन करेंगे और ट्रेन करेंगे हम्म और आप एक और डायमेंशन थ्री डिफरेंट मॉडल रन करेंगे ऐसा आप बोल रहे हो 3 डिफरेंट मॉडल मतलब मतलब बैच साइज में आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बैच किया है हाँ ठीक है 100 के जैसे बैच साइज में आपने बोला कि इतने में इंस्टेड ऑफ जैसे मान लो 10,000 रिकॉर्ड्स थे तो 10,000 रिकॉर्ड्स पे सिंगल रन नहीं किया हमने 100 के बैचेस में डिवाइड किया ओके 100 में रन किया ठीक है और फिर देखा फिर नेक्स्ट 100 पे किया ओके इस तरह की वो पहले जहाँ पे मीन निकालता सारे हाँ। 10,000 रिकॉर्ड्स का इकट्ठे वो अब 100 के बैचेस 100 के ठीक है So epoch is basically a running of all the batches. all the batches all through Multi- 10,000 records Okay. all through that's one epoch One. It's kind of life cycle. लाइफ साइकिल हाँ एक पूरा इटरेशन कंप्लीट Iteration. इट्स ठीक अ है, फॉर all लूप सिंपल फॉर लूप सिंपल ठीक ओके वैलिडेशन सेट हमने देखा था कि हमारे पास एक तरीका था ट्रेन और टेस्ट दो तरीके से स्प्लिट एक मतलब दो पार्ट्स में स्प्लिट करने का डेटा सेट को देन हमने देखा कि दो पार्ट्स में स्प्लिट करने पे क्या होता है कि हमारा कुछ जो पैरामीटर ट्यूनिंग वाला काम है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाला वो हम उसको इफेक्टिवली वैलिडेट नहीं कर पाते कि अब हमने इतना चेंज किया तो डायरेक्ट टेस्ट एक्यूरेसी दिख जाती है अनसीन डेटा आ जाता है तो हम चाहते हैं वो ट्यून होके हमें दिखे कि कितना इंप्रूव हुआ है तब हम उसे टेस्ट पे ले जाएं तो वैलिडेशन सेट इसलिए इम्प्रूव हुआ कि अब आप बेटर ट्यूनिंग करवाएंगे हाइपर पैरामीटर्स की तो आपने छोटा सा डेटा सप्लाई किया जो कि ट्रेनिंग डेटा सेट का ही पार्ट होता है हम पहले उसे लेट्स से पहले हमने 80 और 20 में डेटा सेट को डिवाइड किया था 80% ट्रेनिंग के लिए रखा था 20% टेस्टिंग के लिए रखा था अब हमने क्या करा है
नहीं, अब हमने क्या किया है, 70% डेटा लेट्स से ट्रेनिंग के लिए रखा है, और जो 80 में से 10 बचा हुआ पार्ट था वो हमने वैलिडेशन सेट के लिए रख लिया, वो बचा के रख लिया। और ये पूरा जो 80% डेटा है वो मॉडल देखेगा, और उसी के बेसिस पे जो बचा हुआ 10% था उसी के बेसिस पे ट्यूनिंग करेगा। जो टेस्टिंग फाइनल होगी वो एकदम अनसीन डेटा होएगा, जो 100% का 20% बचा हुआ है, राइट। सो इसका काम बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए होता है। और देन आ जाता है टेस्टिंग सेट, तो उसकी बात हो ही गई ऑलरेडी। अब हम कोड देख रहे थे, यहाँ से क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलेगी वो शायद आपको दिखेगी नहीं। ये आपने क्या? कल लिंक शेयर करना था जया, आपने किया नहीं। हाँ, मैं कर दिया है, आज ही किया है, लेकिन कल नहीं किया था। आप चेक कर लीजिएगा, आज मिल गया होगा, मेल पे भी जाएगा आपके। आज शेयर किया, कल रह गया था। नहीं मिला जया हमें। एक सेकंड देख लेते हैं। P3 लगभग अभी वो आया ना कुछ शायद ये OBS का शेयर मैंने सबके ईमेल आईडीज ऐड कर दिए हैं। अतुल, आपका भी तो यही है ना ईमेल आईडी? हाँ मेरे ये इसमें तो आ रहा है एडिटर में। प्रेमदीप का भी ऐड किया है, मनीष का भी, सबका कर दिया है। सेकंड वन। ओके ठीक है, हाँ जी मिलते हैं जस्ट। हाँ। ठीक है, हमने जो स्टार्ट से देखा था एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारे डेटा सेट में कुछ फीचर्स थे, जैसे कि मीडियन इनकम, हाउसेज, एवरेज रूम्स, एवरेज बेडरूम्स, पॉपुलेशन, एवरेज ऑक्यूपेंसी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और टारगेट वेरिएबल था प्राइस। सो हम इन सारे फीचर्स के बेसिस पे हमने एक फीचर और टारगेट को बेस लेकर के हमने यहाँ पर एक प्लॉट किया था, पेयर प्लॉट, और उससे हमने कोरिलेशन को अंडरस्टैंड किया था। उसके पहले हमने कुछ किया था क्या? नहीं, उसके पहले हमने कुछ खास नहीं किया था, बस डेटा सेट को एक्सप्लोर करके यहाँ पे देखा था कि क्या क्या डेटा सेट है, किस तरीके की वैल्यूज हैं डेटा सेट में। और देन उसके बाद में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया हमने। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था कि हमने एक्स और वाई को अलग कर लिया था। एक्स फीचर्स और वाई टारगेट को अलग करने के बाद हमने उस पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया। देन हमने ये मॉडल प्रिपेयर किया यूजिंग लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, जिसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन अप्लाई किया, फिर हमने प्रेडिक्ट कर दिया। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर शायद हम थे करीब करीब वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन, इन दोनों को एनालाइज कर रहे थे। तो मैंने इसको रन किया था और तब तक टाइम हो गया था। इसको फिर से एक बार रन कर देते हैं। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टेस्टिंग और प्रेडिक्शन की वैल्यूज हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.4770 थी, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0.719। सो इस तरीके से जितनी वैल्यूज हमारी टेस्टिंग की थी उतनी हमारी प्रेडिक्शन में आई होंगी। फिर उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करी और R2 स्कोर कैलकुलेट किया। और इनके बेसिस पे हम ये बोल रहे थे कि मीन स्क्वायर एरर जो है दैट इज द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। और जितना मीन स्क्वायर एरर लो होता है, जितना एरर कम से कम होता है, उतना मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और दूसरा था R2 score. So R2 score is a coefficient of determination. So it indicates the proportion of variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable. और जितना ये R2 score 1 के क्लोज होता है उतना अच्छा होता है। तो in that case the model explains most of the variance in the target variable. Excuse me. Meet him. Say hi. हाय So Jaya, Mummy. in layman जाओ। terms, not like लेके जाओ थोड़ी देर, फिर हम आते हैं। हाँ बोलिए। not technical, but layman term, how we can define like mean square and R2 score. So just like not technical लेमन टर्म्स definition. में, हाँ लेमन टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो मीन स्क्वायर एरर। सो आप एरर को पकड़ के चलिए, मीन स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एरर जो हमने लेमैन टर्म्स में बात किया कि ठीक है, जब आप कभी कॉपी पे एग्जाम देते हैं तो
क्या होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ, मान लीजिए 5 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपका क्या देखा जाता है कि आपने एक्चुअल में जो आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन का, उससे कितना डिफ्लेक्टेड आंसर आपने दिया है, दैट इज उसके बेसिस पे आपको मार्किंग हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से हम मशीन लर्निंग में भी देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल वैल्यू जो थी, उस एक्चुअल वैल्यू से आपका प्रिडिक्शन कितना डेविएटेड है, कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में, और उसको हम मेजर करते हैं, उसी को हम एरर बोल रहे हैं या लॉस बोल रहे हैं। और हमारा काम है कि लॉस को मिनिमाइज करना। अब स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि कभी वो वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, अगर मान लो आपने यहाँ पर आ सकती है, तो कभी बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई, जितना एक्चुअल था उससे ऊपर वैल्यू आ गई, तो ठीक है। अगर एक्चुअल से नीचे चलेगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए सेफ साइड स्क्वायर लेके चल रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद हम उसका एक मीन निकाल देते हैं, जैसे कि आपको क्लास आपका एवरेज निकाल दिया जाता है कि आप एवरेज कितना मार्क्स आपको आया हुआ है, या परसेंटेज निकाल देते हैं। सो वही हो गया मीन स्क्वायर एरर। अभी समझ में आया? ठीक है। हम्म, और अच्छा एग्जांपल मुझे नहीं आया समझ में, अगर आपके इन पास कोई जनरल बेटर हो तो मीन सजेस्ट क्या कर होता दीजिए। है? हाँ, मीन क्या होता है? एवरेज। मीन एवरेज मीन नहीं, एवरेज एवरेज एवरेज, हाँ मीन एवरेज इज को ही मीन एवरेज। कहते हैं। मीन इज एवरेज। मीन इज हाँ हाँ, एवरेज। मीन एवरेज दूसरा होता है। मीडियन होता है जो तुम बोल रहे हो। हाँ हाँ ओके। हाँ, वो पढ़ेंगे, नंपाई आने दीजिए, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके। नहीं तो चलो। मैं और गुड और ठीक सॉरी, एक है, बार तो आप R2 क्या हाँ R2 आर टू को स्कोर बता वो रही हूँ। भी आप बता हाँ, दीजिए। R2 स्कोर में बेसिकली इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस। तो ये भी उसी तरीके का स्कोर है, बस मीन में हम कह रहे हैं जितना लोअर है उतना बेटर है, हम R2 में कह रहे हैं जितना 1 के क्लोज है ना उतना बेटर है। तो R2 score close to 1 indicates the model explains most of the variance in the target variable। मतलब मॉडल ने ना जितना भी टारगेट वेरिएबल में वेरिएंस का मतलब आप नॉर्मली समझिए कि स्प्रेड कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब डेटा जो है आपका कितना स्प्रेड है, उसके स्प्रेड को मॉडल अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फिलहाल R2 स्कोर इज अ काइंड ऑफ गेस, गेस कितना आपका अच्छा फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो R2 स्कोर को आप गेस से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा गेस ना बिल्कुल एक्चुअल के आसपास होना चाहिए, तो वैसा वाला है ये। तो कितना ज्यादा वो वेरिएंस है, वो सारा ये R2 स्कोर एक्सप्लेन करता है। और अभी आप समझ लीजिए कि वो एक तरीके का गेस हो गया कि टारगेट से कितना नजदीक है आपका गेस। सो हाउ डू यू इंटरप्रेट R2 स्कोर ऑफ 8.8? तो ये 1 के नजदीक है, so it means 0.8 means 80% of the variance in the target variable can be explained by model features. This indicates a good fit, though it also suggests there is still 20% variance that is not explained by the model, right? So यहाँ पर हमें ट्रेड ऑफ हर जगह मिलेगा, मशीन लर्निंग एआई में आपको ट्रेड ऑफ मिलेगा कि इतने ही परसेंट अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है, इससे ऊपर मॉडल का परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है। तो एकदम 100% नहीं होता कुछ भी रियल में, तो यहाँ पे भी नहीं होता है। ओके, अभी हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया है, क्या करने के लिए, टू चेक कि हमारा कोरिलेशन कैसा आ रहा है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का लाइन कुछ यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, और इसको ड्रॉ करने के बाद में हमने इसके ऊपर एक फिट देना चाहिए था, कहाँ दिया है, अच्छा यहाँ पर ही मान लीजिए कि एक लाइन है, अभी भी इमेजिनरी मान लीजिए, यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन का लाइन है, वो शायद प्लॉट करना रह गया है, पर कोई नहीं। तो वो एक एस्टिमेटेड लाइन आ जाएगी, और वो एस्टिमेटेड लाइन आपको हेल्प करती है न्यू डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए। यहाँ बस स्कैटर प्लॉट ही हुआ है। So basically what does the scatter plot of actual versus predicted tells us? So the scatter plot of this tells us it helps to visualize how well the model's prediction match the actual values. Ideally the point should be close to 45-degree line, indicate that predictions are accurate. So deviations from this line indicate error in model performance. So ओके, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं इनके बीच में, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड प्राइसेस के बीच में? तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, दैट इज हम डिस्कस कर चुके हैं, अंडरफिटिंग हो सकती है या ओवरफिटिंग हो सकती है। फिर क्या क्या हो सकता है, आउटलायर्स हो सकते हैं, नॉइस हो सकता है, मिसिंग डेटा हो सकता है, अगर डेटा के हम जो हमने इनिशियली डेटा प्रिपरेशन का काम किया था शायद हमने वो अच्छे से नहीं किया है, उसकी वजह से भी हमारी मॉडल में लर्निंग में या उसकी एक्यूरेसी में इश्यूज आ सकते हैं। देन फीचर सिलेक्शन में आउटलायर इशू, और नॉइस में क्या डिफरेंस होगा?
आउटलायर आपका जब हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाहर निकल जाती हैं चीजें, तब हमारे वो आउटलायर होते हैं। नॉइज आपके डेटा में मतलब नॉइज जो है ना वो अलग सिनेरियो में यूज हो रहा है। अभी सीएसवी फाइल में आप उसे आउटलायर ही बोलेंगे, बट जब हम इमेज की बात करते हैं ना, तो इमेज में नॉइस वर्ड भी आता है, या ईसीजी सिग्नल्स वगैरह की बात करते हैं, वहां पे नॉइस आता है नॉर्मेलिटी में। तो दोनों अलग अलग सिनेरियो में है। इसी डेटा में नॉइस भी हो और इसी डेटा में आउटलायर भी हो, वो नहीं होगा। तो सीएसवी फाइल जो भी हम यूज कर रहे हैं, इसमें आउटलायर ही हमारा नॉइस हो जाएगा, ये अलग सिनेरियो में नॉइस आएगा। And then model assumptions, the assumption made by the linear regression model may not hold for the data set. ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन के assumptions हो सकते हैं, हमने जहाँ पे रिग्रेशन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में आप रिग्रेशन लगा रहे हैं, कुछ ऐसा भी आपने कुछ हिट एंड ट्रायल कर दिया है, तो ये गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी डाउन हो सकती है। अब आ जाता है ट्रेन टेस्ट और वैलिडेशन का। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है, फिर ये भी सेम ही है। यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद में हमने एक बार स्प्लिटिंग करने के बाद में जो हमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मिले थे ना, हमने इनको फिर से डाल दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर। और अब की बार हमको एक्स ट्रेन, एक्स वैल, वाई ट्रेन और वाई वैल मिल गए, जिनका शेप आप चेक कर सकते हैं। शेप मतलब कि कितनी वैल्यूज हैं किसके अंदर में। और अभी ध्यान रखिएगा, आप मशीन लर्निंग टर्मिनोलॉजी ही समझ रहे हैं, आप लीनियर रिग्रेशन नहीं समझ रहे हैं, आप पॉलिनॉमियल डिग्री रिग्रेशन नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एक साथ सब मत समझिएगा, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन देन फिट कर दिया हमने, देन उसके बाद में हमने यहाँ पर वैलिडेशन सेट पर, आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स टेस्ट हम यहाँ पर वैलिडेशन सेट पे टेस्ट उसको प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, वाई वैल प्रेड हमने निकाला, मीन स्क्वायर एरर इसके रिस्पेक्ट में निकाला, फिर इसके बाद में हमने ये वैलिडेशन सेट की मीन स्क्वायर एरर निकाली है, फिर हमने टेस्ट सेट की निकाली है, पर हमें यहाँ पर मॉडल की फाइन ट्यूनिंग वगैरह नहीं करी है। राइट, जस्ट ये दोनों टाइप की एक्यूरेसीज निकालने के बाद में हमने टेस्ट की ही एक्यूरेसी यहाँ पर प्लॉट करी है, जैसे ये पुराना वाला ही प्लॉट है। और बस यहाँ पर इतनी बात हमने करने की कोशिश की है कि वैलिडेशन सेट बनाते कैसे हैं और वैलिडेशन सेट का यूज किस लिए होता है। वो पूरा यूज इस यूज केस में नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें ज्यादा अच्छा इसका आपको यूज दिखता है जब हम डीप लर्निंग में काम करने जाते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में ज्यादातर पैरामीटर्स हमारे फिक्स्ड ही होते हैं। उसमें वेरिएशंस करने के उतने ज्यादा रास्ते नहीं है। डीप लर्निंग में ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, तो ये वैलिडेशन सेट वहां ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है इसमें वैलिडेशन सेट को, या लीनियर रिग्रेशन में स्पेसिफिकली जाके कोई पैरामीटर को ट्यून नहीं किया मैंने यूजिंग वैलिडेशन, जरूरत नहीं पड़ी। सो व्हाट इज ओवरफिटिंग? सो ओवरफिटिंग क्या था वो हम समझ चुके हैं। ऑफिस में ना मॉडल लर्न ट्रेनिंग डेटा टू वेल, कई बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, बायस और वेरिएंस हमें समझना था क्या होता है। तो bias basically होता है when model refers to the error introduced by approximating the real world problem. Okay, इसका एक बेटर सिनेरियो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, इससे समझते हैं। कहाँ लिख दिया, कहीं तो था, 1 सेकेंड। अभी तक तो आया नहीं। कहाँ चला गया? उसमें बेसिकली एक डार्ट वाला एग्जाम्पल था, उसके थ्रू समझाया हुआ था। Because model is high bias, कहीं और ऐड कर दिया है क्या? इसकी 2-3 फाइल्स हैं, शायद उनमें से कहीं ऐड कर दिया होगा। वो 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, पता नहीं कहाँ ऐड किया है, कोई नहीं, अभी इधर से ही समझ लेते हैं। बेसिकली बायस का मतलब ये है कि आप एक वो वाला जो हम लोग गेम खेलते हैं जिसमें वो आ, ये वाला जिसमें डार्ट मारना होता है आपका, और एक रेड एक, बुल। एक टारगेट बना होता है। राइट, वो गोले बने होते हैं, एक मिडल पॉइंट जहाँ पे आपको डार्ट लगना चाहिए, आपका एक्चुअल टारगेट होता है, एक
कितने सारे होते हैं, आप किसके अंदर आते हैं, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। तो बायस इज बेसिकली कि आप, एक तो पहली बात कि आप टारगेट वाले पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो मिडिल जहाँ पे आपका डार्ट लगना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है, वो डेविएट हो रहा है। बायस का मतलब हुआ हर बार सेम ही डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। मान लो आपका लेफ्ट में जा रहा है तो हर बार लेफ्ट में ही जा रहा है। तो ये हो गया बायस कि आप एक ही साइड पे आपका झुकाव है, दैट इज बायस। और वेरिएंस का मतलब ये है कि आपका जो वो डिफ्लेक्शन है वो हर डायरेक्शन में कितना स्प्रेड हो रहा है, वो वेरिएंस होगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल में बहुत बेहतर लैंग्वेज में लिखी हुई थी यही बात, तो वही मैं दिखाने की कोशिश करी थी, बट कहाँ डाल दिया अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं। तो बेसिकली बायस वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो आपसे शेयर की हुई है ना, थोड़ी देर बाद उसमें ऐड कर दूंगी मैं, वो डेफिनेशन कहीं लिख के रख दी है। So basically, bias refers to the error introduced by approximating the real world problem, which may be complex. ये definition बहुत ही tongue twisting है, यहाँ से समझ आएगा नहीं। High bias can cause the model to miss relevant relations between the features and output। ठीक है, ये बात आपको शायद पहले से पता है कि हाई बायस मतलब जब हमारी अंडर फिटिंग होती है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मॉडल जो है वो एक्चुअल डेटा को सही से प्रेडिक्ट करने का नहीं सीख पा रहा है, और वो हमेशा मिस कर रहा है आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को। तो वो हो गया बायस। और वेरिएंस हो गया आपका कि जो हाई वेरिएंस कैन कॉज द मॉडल टू लर्न रैंडम नॉइस इन द ट्रेनिंग डेटा। सो मतलब टू फिटिंग टू, मतलब बहुत ज्यादा फिट हो रहा है वो डेटा के साथ, लर्न हो रहा है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि हम पता कैसे करते हैं कि हाई बायस का केस है या हाई वेरिएंस का। तो आपका अंडर फिटिंग जब होता है वो हाई बायस होता है और लो वेरिएंस होता है, और ओवर फिटिंग होता है वो हाई वेरिएंस और लो बायस होता है। ठीक है, इनको पता करने के लिए हम इनकी एरर्स को मॉनिटर करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग एरर और टेस्टिंग एरर दोनों हाई जा रहे हैं, बहुत ज्यादा एरर आ रहा है, तो इसका मतलब हाई बायस है। और अगर हमारा ट्रेनिंग जो है वो लो है और टेस्टिंग एरर हाई है, तो फिर हाई वेरिएंस है। ठीक है, तो ये दो केसेस को मतलब आप अगर इंटरव्यूज वगैरह के लिए कंपनीज वगैरह के प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस अक्सर से पूछ लिए जाते हैं। जस्ट कि अगर ट्रेनिंग एरर लेस है और तो अगर अगर हमने ट्रेनिंग टेस्ट हमने ट्रेनिंग डाटा पे ट्रेन किया मॉडल, तब तो अगर हमने बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया, हाँ। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा के साथ एरर कम आएगा क्योंकि हमने ट्रेनिंग ज्यादा कर दिया है, ठीक है ना। तो ट्रेन हमने ज्यादा कर दिया यानी कि ओवरफिटिंग हो गया, और क्योंकि वो टेस्ट डाटा पे चलाएंगे तो वेरिएंस ज्यादा आएगा, तो यानी कि हाई वेरिएंस ओवरफिटिंग का केस हो गया ये, है ना। हाई क्योंकि टेस्ट डाटा पे तो ट्रेन किया नहीं था, टेस्ट डाटा पे तो हम चेक कर रहे हैं, तो टेस्ट डाटा का वेरिएंस ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ओवरफिटिंग हो गया। पर जब हमने उसको कम ट्रेन किया ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग डाटा के साथ ही गैप ज्यादा आएगा क्योंकि ट्रेनिंग नहीं किया, तो अंडर फिटिंग हो गया, यानी कि एरर है, यानी कि बायस है। ओके, ठीक है, और हो सकता है टेस्ट डाटा के साथ, हो सकता है टेस्ट डाटा के साथ कम आए डिफरेंस। ओके, ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए वैसे, बट अगर आपका ट्रेनिंग डाटा के साथ ही कम आया तो वो अंडर फिटिंग हो गया और हाई बायस हो गया। ओके। और मैं बायस्ड पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जया मेरे जो मैनेजर है ना, वो भी इसमें एआई के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, तो वो मेरे से रोज स्टेटस लेते हैं हर वीकली। तो उसमें एक पॉइंट था कि क्योंकि हम लोग सारा जो डिस्कशन चलता है हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है कि किसी भी मॉडल को जब ट्रेन करते हो, बायस इज इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, बायस सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है कि वो प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी मुझे थोड़ा मतलब सा मॉडल की इंटीग्रिटी मतलब कि मतलब आप मॉडल को ट्रेन नहीं है मॉडल ट्रेन नहीं है, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन तो है, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है, दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न। ओके, या दूसरा, अगर मैं बहुत जेनरिक टर्म में बात करूं, अगर कि जो चैट जीपीटी है, अगर चैट जीपीटी पे कोई बंदा जाके करता है और वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, फिर तो बायस केवल हमेशा अंडर ओवरफिटिंग नहीं, सॉरी, अंडर फिटिंग के केस में ही आएगी या कोई और भी रीजन है कि बायस आ सकता है? अंडर फिटिंग में ही आएगा। और कोई तरीका नहीं है? डेटा मैनिपुलेशन के साथ में बायस नहीं हो सकता? डेटा ही मैनिपुलेट कर देंगे तब आगे का मशीन लर्निंग का मॉडल तो वैसे ही बायस्ड हो जाएगा ना। डेटा मैनिपुलेशन तो एक अलग ही रास्ता हो गया, मतलब कंसर्न, आपने वो अलग स्टार्टिंग कंसर्न, से। वो इसका इससे लिंक नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, डेटा तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं, डेटा आपने जो हमें सब दिया था ना वो एकदम सही है। डेटा इंटीग्रिटी पे कुछ नहीं है।
हम जिस कुछ नहीं है। डोमेन में वहाँ पे डाटा तो मान के चल रहे हैं सही है, ठीक है। वो हाँ, सेपरेट डेटा डोमेन। मान तो के चल रहे हैं, बायस इज सही है। ओनली विद द अंडरफिटिंग, ठीक है, दैट्स ऑल गुड। हम्म। And what about मॉडल, लाइक अगर मॉडल में हम लोग अगर कुछ ऐसे फीचर्स इग्नोर कर दें तो बायस हो सकता है क्या मॉडल? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। आपकी हाँ, हो सकता है आपने कोई इम्पोर्टेंट जो आपने कोरिलेशन था ना उसको सही से चेक नहीं किया ऊपर, तो आपने सोचा कि ये वाला फीचर किसी काम का नहीं, आपने हटा दिया उसको, या उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये इम्पोर्टेंस नहीं मिली वाली चीज हम डीप लर्निंग के केस में देखेंगे, वहां पे फीचर इम्पोर्टेंस भी एक चीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको यही मान के चलते हैं मशीन लर्निंग में कि हमने वो वाला फीचर ही हटा दिया, यूज नहीं किया ट्रेनिंग के लिए, तो हमारा बाकी फीचर्स के बेसिस पे उतना बढ़िया मॉडल बन ही नहीं पा रहा है, तब हमारा अंडर फिटिंग का केस हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ जो है इसको समझ How लेते do हैं। you, sorry, basic question. How do you then describe the difference between loss and bias? The loss is also kind of variance, right? Yeah, actual values. लॉस से ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि अंडरफिटिंग है ओवरफिटिंग है। लॉस इज द मेजर ऑफ द बायस एंड द मेजर ऑफ द वेरिएंस। Okay. एम आई राइट? हाँ हाँ, ये राइट। मतलब लॉस पहले कंप्यूट हमने कर रहे लॉस ही हैं। निकाला था, पहले हमने वो लॉस आप बोल रहे हैं ना वही निकाला, फिर हमने ये वही- देखा कि ट्रेनिंग का लॉस कितना है और टेस्टिंग का लॉस कितना है, हमने दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर किया। पहली बात है कि अगर ट्रेनिंग का लॉस ही बिल्कुल कम है, मतलब सॉरी बहुत ज्यादा है ट्रेनिंग का लॉस, मतलब कि आपका एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में गैप ही बहुत ज्यादा है, तो अंडरफिटिंग में फिर तो अंडर फिटिंग हो गई ना। आपका एक्चुअल डेटा मान लीजिए आपने हाउसिंग का जो प्राइस था वो $500 के आसपास होना चाहिए था और प्रेडिक्शन के बाद आया $100, इतना बड़ा गैप हो गया, तो मॉडल जो है आपका ट्रेंड ही नहीं है सही से। अगर सही से ट्रेनिंग होती या आपने सही से लेट्स से आप ही एक मॉडल बन गए, आपने सही से पता किए होते रेट, तो आप सही रेट बता पाते ना। अभी तो आप बहुत ही लो रेट बता रहे हैं, किसी की एक्सपेक्टेशन इज लाइक उन्होंने बहुत कम मनी को एक्यूमुलेट किया हुआ है और जब एक्चुअल में लेने जा रहे हैं तो 500 समथिंग रेंज में जा रहा है, राइट। तो आपका मॉडल ही ठीक से ट्रेन नहीं था, हमें प्रॉपर्टी डीलर ने रेट ही ठीक नहीं बताया। तो यहाँ हो गया आपका हाई बायस। एंड आपका जब आपका ट्रेनिंग टाइम पे जो एक्यूरेसी सॉरी एरर है वो लो है, मतलब हम समझ गए कि मॉडल ने जो प्रेडिक्शन दिया है वो एक्चुअल के करीब ही है, तभी तो एरर लो आया। तो ट्रेनिंग एरर लो है, लेकिन जब टेस्ट करने जाते हैं तब बहुत हाई एरर दे रहा है। मतलब कि मान लीजिए आपने सारा पता किया था पाउंडिचेरी का रेट के बारे में और अब हम आपसे पूछ रहे हैं चेन्नई में प्रॉपर्टी का क्या रेट है। तो इस लाइक जो नया अनसीन डेटा है उसका बिल्कुल अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अलग ही जगह का डेटा है, तो वो सही रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। तो उस केस में लो वेरिएंस है, सॉरी हाई वेरिएंस है। वर्ड बहुत बार बोलने के बाद टंग ट्विस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा। हाँ, वो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सर, ये इन्हीं चीजों को 4-5 बार लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा जो डेफिनेशन अच्छी लगे। अब हम फिलहाल समझ रहे हैं कि अगर हमें इनकी एरर्स को प्लॉट करना होता है तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्किल लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से पॉलिनोमियल फीचर नाम का एक मॉड्यूल उठाया है। और इस पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक्स और वाई हमारे इस डेटा सेट के नहीं लिए हमने हमने कुछ रैंडम नंबर्स लिए हैं, जहाँ पर np.random.rand एक फंक्शन होता है, हम पढ़ेंगे numpy में। और उसको लेने के बाद हमने एक x प्रिपेयर कर लिया फीचर्स का और हमने एक y प्रिपेयर कर लिया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं आई कैन शो यू दैट। ये तो जस्ट 80 और 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर लेगा ना, यस एज पर दिस। हाँ हाँ हाँ, डिटेल में हम समझेंगे इसको numpy में नेक्स्ट वीक में ही, मतलब अभी अपना फर्स्ट वीक हुआ है ना, तो सेकेंड वीक में थोड़ा सा पाइथन देखेंगे और उसके बाद फिर हम numpy पे जाएंगे। अगर किसी का पाइथन थोड़ा बहुत वीक है तो वो कवर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये आपका x है और इसके नीचे आपका ये y है, ठीक है। ये x और y का डॉट डेटा हुआ है, एक ये x हो गया y हो गया, और इसके बेसिस पे हमने इसका स्प्लिटिंग वगैरह करा। इसको स्प्लिटिंग करने के बाद में हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल डिग्री पॉलिनोमियल फीचर करके यहाँ पर लिया हुआ है, और डिग्री जो है ना वो हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये डिग्रीज कहीं पर डिफाइन ऊपर किया है, ये लिस्ट लिया है रेंज ऑफ 1 to 15, मतलब कि कितना डिग्री, मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 ऐसे डिग्री इंक्रीज करते जा रहे हैं। पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन लगाया है, फिर यहाँ पर मॉडल प्रिपेयर किया है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, फिर प्रेडिक्ट करवाया है उसको एक्स ट्रेन पे, और वैलिडेशन पे दो प्रेडिक्शन लिए हमने, एक ट्रेनिंग प्रेडिक्शन लिया है और सॉरी एक हमारा
एक्स ट्रेन पे है, एक्स वैलिडेशन पे है, फिर हमने मीन स्क्वायर एरर लिए हैं और इन दोनों को प्लॉट किया। मतलब हमने ट्रेनिंग टाइप का जो एरर था ना उसको भी प्लॉट किया और वैलिडेशन टाइप का जो एरर था उनको भी प्लॉट किया है। इनको प्लॉट करने के बाद बस हम इतना देखना चाह रहे हैं कि हमारा कितने डिग्री तक जो फंक्शन जा रहा है वो उसमें डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ट्रेनिंग एरर लो कैसे दिख रहा है और वैलिडेशन एरर उसके रिस्पेक्ट में कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पॉलिनोमियल डिग्री करीब करीब 1 है और यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग एरर ब्लू वाला है तो वो 0.16 के आसपास है और वैलिडेशन एरर जो है वो बहुत हाई है 0.26 के आसपास। ठीक है, मतलब इसका और इसका गैप ज्यादा है। तो आपका ये मॉडल जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग एरर लो है लेकिन टेस्टिंग एरर वैलिडेशन एरर ज्यादा है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं इस एरिया की। यहाँ पर एकदम दोनों साथ मिलके चल रहे हैं, मतलब कि ये 2 के बाद में करीब 10 या 11 तक ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, दोनों की लगभग बराबर एरर आ रही है और पर काफी कम पॉलिनोमियल भी है। डिग्री मतलब क्या है यहाँ पर? वो मैंने बताया ना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो हम डिग्री नहीं नहीं, पर बढ़ाते जा रहे किसका हैं। एक्स क्यूब किसका करें हम लोग? इसमें आप एक्स ये है ना यहाँ पर आप जो जो आपने एक्स लिया है ना यहाँ पर इसकी डिग्री बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पर फिट किया है ना, पॉली के साथ में आपने फिट किया है। तो मान लेते हैं लिस्ट आपने लिया हुआ है, इस एक्स पे ही लगा रहे हैं हम ये पॉलिनोमियल डिग्री का ऑपरेशन। तो जो आपने फीचर्स लिए हैं ना उन्हीं का डिग्री इम्प्रूव इंक्रीज करें, आप फंक्शन ही चेंज कर रहे हैं हर अगर बार। अगर जो आप तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। फंक्शन बना रहे थे एक्स का, हम्म, वो फंक्शन ही चेंज हो रहा है, उसकी डिग्री चेंज हो रही है। ओके, तो हम लोग ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम लोग उसकी अलग डिग्री डिग्री बढ़ा के पॉलिनोमियल, देंगे। ओके वो ठीक है, टेस्ट करें हाँ किस डिग्री किस पे। डिग्री पे बनेगा। ओके ठीक है। हाँ हाँ ये भी करना ही चाहिए, हम लीनियर तक अभी तक सोच रहे थे, बट हाँ, व्हाई लीनियर, वाई व्हाई नॉट 2 टाइम्स, व्हाई नॉट हाँ 3 टाइम्स, ये हाँ। वो तो है। ओके। यहाँ पर हमारा जो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो ऊपर चला गया है जबकि हमारा ट्रेनिंग एरर लो है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एरर लो है लेकिन टेस्टिंग एरर हाई है या वैलिडेशन एरर हाई है। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, ये हमारा ओवरफिटिंग का केस हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको अच्छे से सॉरी समझ लेते हैं, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये कहाँ से आ गया, हाँ। So underfitting at low polynomial degree, both 1 and 2, training and validations error are high. Model is too simple to capture the underlying patterns, means high bias. तो start में हमारा जो high bias का केस है, फिर यहाँ पर हमारा मॉडल better generalized है। तो ये at high polynomial degree 10 to 15, 10 to 15 मतलब यहाँ के बाद में 10 के बाद में हमारा हाई वेरिएंस का केस है जहाँ पर ट्रेनिंग एरर लो है पर वैलिडेशन एरर हाई है। और 3 से 5 बोला है बट आप लगभग लगभग समझिए, हाँ यही 2 के बाद में 2 से लेकर के 10 तक में करीब करीब का मॉडल बढ़िया चल रहा था। तो तो पर 3 इस to ये 5 जो चेंज होना चाहिए। हाँ बोलिए। रिपोर्ट किया, जो भी प्लॉट हुआ, इससे यूज कैसे करेंगे इसको? क्या हम लोग एल्गोरिथम में बोलेंगे कि ओनली पॉलिनोमियल 2 से 10 तक यूज करना है? नहीं, हम डिग्री 3 यूज करेंगे ना इस केस में। पर अपने को मॉडल में हम लोग कहाँ चेंज करेंगे या करने की जरूरत नहीं ये है? मॉडल जो डिग्री 3 के साथ ट्रेन होगा वो मॉडल यूज होगा। लेट्स से 3 या 4, मेरे हाँ ख्याल 3 हाँ, भी सही है। तो इसको हम करेंगे आराम से, पूरा एक साथ मत समझिए, बस ओके, हाँ इतना हाँ अभी नहीं, समझ ठीक। गए ना आप। हाँ इसी हम्म। लेवल पे रहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ कोई सोचेंगे बात तो नहीं। आगे वाले में हाँ, कंफ्यूजन डिग्री बढ़ जाएंगे। नहीं ठीक है, ऑल गुड। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज समझ ली। और ठीक है, यहाँ पर इसी एरर को बढ़ाकर जो 1 to 15 थी, हमने एक बड़ा रेंज देखा कि क्या ये वेरिएट भी हो रही है। तो हमने बस डिग्री चेंज करी है, यहाँ पे 50 डिग्री डालने के बाद में सेम प्लॉट किया है। तो ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके का प्लॉट आ रहा है। तो पहले ये प्लॉट ऊपर था, नीचे वाला ये ऑरेंज वाला ऊपर था, यहाँ जाके ऑरेंज वाला नीचे हो गया है। तो मतलब एक लंबा केस ओवरफिटिंग का दिखा रहे हैं, इसमें साइन का फंक्शन लिया हुआ है, इसी वजह से ये इस तरीके का प्लॉट आपको दिख रहा है, रैंडम के साथ साइन भी था वहां पे। और जब आपका एक्चुअल मॉडल रियल वाले डेटा पे होता है ना तो वो बहुत ही अलग तरीके के प्लॉट्स आते हैं, वो इतने इतने अच्छे से, मतलब ये तो बहुत सिंक्रोनस टाइप का है बट इतने अच्छे आते नहीं है, कहीं नीचे कहीं बहुत ऊपर कहीं एकदम बराबर ऐसा चलता है। ठीक है, बस वो एक लंबे रेंज में दिखाया हुआ है सेम ही बात। अच्छा, अभी ये रिग्रेशन से हटके हम क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। तो
टर्मिनोलॉजी के टर्म में अगर बात कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, केवल अब हम ये बात कर रहे हैं कि रिग्रेशन के केस में हमारा y कंटिन्यूअस था और क्लासिफिकेशन के केस में हमारा y जो है वो कैटेगोरिकल होने वाला है। तो कंटिन्यूअस में आपके पास अगर मैं बात कर रही हूँ तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज y कंटेन कर सकता है, मतलब कि नंबर लाइन पे आप कुछ भी डेसिमल में वैल्यू उठा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस प्लस इन्फिनिटी तक। क्लासिफिकेशन में आपका मॉडल जो है वो कुछ कैटेगरीज में ही सीमित हो जाता है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। मतलब कि ये एक फ्लावर का एग्जाम्पल है जिसका नाम है आइरिस फ्लावर, और इस फ्लावर की 3 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है, एक सेटोसा, वर्सिकल और वर्जिनिका। तो यहाँ पर हमारा मॉडल बस 3 ही कैटेगरी का आउटपुट देगा, वो कोई भी रैंडम नंबर आउटपुट नहीं दे सकता। जैसे कि अभी दे रहा था प्राइस के टर्म्स में, अगर हम बात कर रहे थे तो प्राइस में कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो 500.75, 0.25, 0.79, कुछ भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वैल्यूज थी। यहाँ पर हमारे पास बस 3 ही कैटेगरी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी हम पढ़ेंगे। पहले वो डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी कि कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं जो कि आउटपुट में आएंगे। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में कौन सा वाला एल्गोरिथम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइरिस डेटा सेट का एग्जाम्पल। इसमें हम वही करने वाले हैं जो पहले किया था। हम sklearn से डेटा सेट उठा लेंगे, ये हमारा प्रैक्टिस डेटा सेट है, और इस पे एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन लिया था, यहाँ पर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली लाइन सेम रखी है, और यहाँ पर जो हमारी मॉडल इवैल्यूएशन है वो चेंज हो गया है। मॉडल इवैल्यूएशन में पहले हम MSE पे बात कर रहे थे और R2 स्कोर पे बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे बात करेंगे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो मॉडल इवैल्यूएशन के टर्म्स में भी आता है, और एक ट्री को विजुअलाइज करेंगे। बस बाकी प्लॉट वाली लाइब्रेरी है जो विजुअलाइजेशन में यूज होगी। तो यहाँ पर हमने डेटा सेट लोड कर लिया। इसमें डेटा सेट में एक्स और वाई अलग अलग गिवन है, तो हमें उसके लिए वो प्रिपरेशन वाला काम नहीं करना पड़ेगा कि पहले एक्स में से वाई टारगेट वाला कॉलम रिमूव करो, वो नहीं करा है हमने, डेटा में ले लिया है। अच्छा, इसमें डेटा में क्या क्या जाता है तो उसको समझने के लिए इसमें ये सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, हाँ हाँ बोलिए। सॉरी, जो डेटा सेट है इसमें क्या होगा, इमेजेस होंगी या क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ओके, दिखाती हूँ इसमें क्या होगा। इसको मैं कर देती हूँ। पत्ती का इसके नीचे ये ऑलरेडी डाला हुआ है, ये है इसका आइरिस में डेटा में। ये सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो इसमें 4 तरीके की एंट्रीज हैं। तो इन एंट्रीज का डेटा एक्चुअली इन्होंने काउंट कर रखा है। जो आपकी पत्ती का लेंथ होता है ना, इसके नीचे जो सेपल होता है और इसकी पेटल होती है, उसको लेंथ को मेजर कर रखा है सेंटीमीटर्स में, कि तो ये सेटोसा में एज ए, इतनी, नहीं आप सॉरी, आप कंटिन्यू करो। हाँ सेटोसा में इतनी लेंथ का आपका पेटल होएगा। सेटोसा मतलब जिस कैटेगरी का है। फिर दूसरा वर्सी कलर में थोड़ा सा लेंथ अलग होगा, और वर्जीनी का एक तीसरी कैटेगरी है आइरिस फ्लावर की, उसमें थोड़ा सा और डिफरेंट होएगा। तो सबको मेजर कर करके लिखा हुआ है। और सेटोसा वाले की इन्होंने 500 एंट्रीज ली है, सॉरी 50 एंट्री, इसमें टोटल 150 एंट्रीज है, 150 एंट्रीज है। इसमें 50, 1 सेकेंड में आती हूँ, एक मिनट ना, समवन इज कॉलिंग माय नेम। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है तो सर इसमें जो अच्छा दूसरा हाँ जी, कुछ पूछना था? नहीं, अतुल सर ने बताया। नहीं हो गया। हाँ अच्छा है, एटलीस्ट आपके पास एक 2 लोग हो गए कुछ डाउट्स डिस्कस करने के लिए। तो क्लास नहीं में हमारे तो हम डाउट्स तो नहीं आते हैं। थोड़ा सा हाँ मतलब वी आर जस्ट डिस्कसिंग बट या आई थिंक विल गेट टू नो वंस यू फिनिश दिस ऑफ विल आस्क इन द एंड या ओके, सो हाँ, आइरिस डेटा सेट का ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। और इसका
डेटा मतलब इसका सारा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ना, लेट मी ओपन स्पाइडर, आपको उसमें ये बहुत अच्छे से दिखता है। अच्छा, आपने एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है? एक हमने आपने अभी बोला था शायद वीएस मैं नहीं कर सकता। नहीं हम कर लेंगे, अभी हमने वीएस कोड किया हुआ है, बट हम कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक को पाइथन रन कर सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना एक दूसरा आईडी होता हम है जो एनाकोंडा भी कर एनाकोंडा के लेंगे। साथ हाँ साथ में आता है, वो मैं उस पे एक बार वेब दिखाती कोड हूँ। पे करना बेटर बाद में। विजुअलाइजेशन दिखता है उस पे, तो इसलिए हाँ मैं श्योर, उस पे मैंने किया हुआ है, दिखाती हूँ एनाकोंडा आपको। यूज कर लेंगे। ठीक है। एनाकोंडा अपना ही पाइथन रिलीज करता है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी सेट पूरा, तो इसलिए मतलब नहीं पूरा आपको उनका हर रहता एक लाइब्रेरी को पिप इंस्टॉल नहीं करना पड़ता उसमें, है। वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल होके आपको पूरा वो पैकेज एनवायरनमेंट कर मिलता है वो जब आप पाइथन को काम पूरा कर पैकेज करके सकते हैं। देगा, कुछ भी कर सकते हैं दोनों, इट्स ओके। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आइरिस का केवल इतना लिखा है, फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट डेटा सेट्स। अभी हम केवल डेटा सेट लोड करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये आइरिस का डेटा सेट है, इसने इस तरीके का डिक्शनरी क्रिएट किया है। इस डिक्शनरी में ये हमारी कीज हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज हैं, उनके टाइप वगैरह सब मेंशन्ड है। तो अगर आप डेटा नहीं पे मैं कुछ जाएंगे, नहीं दिख रहा है। हमें दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हमें सिर्फ दिख दिखा के नहीं सिर्फ ओके, ये लोड आइरिस दिख रहा एक, है। अच्छा एक सेकेंड, वो मुझे एंटायर स्क्रीन करना करना है, होगा तब सही से दिखेगा। वो तो यही कर रहा था, एक सेकंड में। क्योंकि वो अलग विंडोज खुल रही थी, इसी वजह से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं बात करी थी कि आपको अभी विजुअल है। या ठीक है, तो अभी हमारे पास ये डेटा है, ये कीज है एक्चुअली, और ये इनकी वैल्यूज है, की वैल्यू पेयर है। ये आइरिस एक्चुअली लोड आइरिस एक की वैल्यू पेयर है, और जिसके अंदर आपको डेटा मिल गया है। डेटा में ये डेटा है जो हमें वहां दिख रहा था। ये डेटा क्या क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पे फीचर नेम्स के नाम से। तो दिस इज लाइक सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें हमारे पास कितनी एंट्रीज है, अब कितनी एंट्रीज है उसको हम देख लेते हैं। टारगेट हमारा कैसा है, तो टारगेट हमारा ये है। टारगेट मतलब कि ये 0 और कुछ टारगेट में कुछ वैल्यूज, यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो कुछ 1 है फिर 2 है, तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज का हमारे पास डेटा है। और ये जाके टारगेट नेम्स अगर हम चेक करेंगे तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 0 वाली सेटोसा, 1 वाली वर्सिकल और सेकंड वाली वर्जीनिका। 3 डिफरेंट कैटेगरीज का ये डेटा है, राइट। ये डेटा तो सेट कौन से टाइप का है? ये टेब्यूलर नहीं है क्या? ये टेबुलर ही है, बट ये टेबुलर को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके आइरिस, ये जो एसक्यूएल ने अपने पास में स्टोर किया हुआ है लाइब्रेरी में, उन्होंने एक मॉड्यूल में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये इसको एक्स ही है, ये आपका एक्सेल ही है, और ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये आपका टारगेट है। बट हमें उसके साथ में फीचर के नाम वगैरह की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो डायरेक्टली इसको एक्स ले लेते हैं हम और इसको वाई ले लेते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये एक्स एक्चुअली है क्या। मशीन के लिए तो सब कुछ नंबर ही है, तो आपके समझने के लिए है कि क्या सी चीज क्या है, राइट। ओके। तो ये डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, और कुछ खास इसमें है नहीं। फाइल का नेम वगैरह क्या है, ये देखिए iris.csv फाइल को ही उठा रहा है। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ जा देख हाँ, लेते हैं। तो ये वही है। बाकी इसमें ना पार्सिंग इन्होंने बढ़िया से कर दिया है, तो इसलिए उस डेटा को हमें खुद से बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी हमें प्रोसेस्ड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये वही है सारा जो हमने उधर देखा था, वो वीएस कोड या जुपिटर नोटबुक पे भी दिख जाता है। बट ये सब चीजें देखने के बाद ना कुछ समझ नहीं आता है कहना क्या चाहते हैं। तो ये सब डिस्क्रिप्शन है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं वही अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे। उसके बाद हमने जो लीनियर रिग्रेशन में किया था, यहाँ पर भी हम सेम काम कर रहे हैं। एक हमने वेरिएबल लिया, उसको असाइन कर दिया डिसीजन ट्री क्लासिफायर, फिर हमने फिट फंक्शन लगाया, फिर हमने प्रेडिक्ट फंक्शन लगाया। तो बस इतना हमें देखना है कि दोनों चीजें सेम चल रही हैं, फिट भी और प्रेडिक्ट भी। अब इसके बाद में जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो हमारा वाई प्रेडिक्शन आ गया, और इसकी हमने एक्यूरेसी कैलकुलेट करी। एक्यूरेसी स्कोर क्या आएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक हमारी क्या है, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम ये चीज देखते हैं कि प्रेडिक्शन में हमारे पास क्या क्या था, टेस्ट में हमारे पास क्या क्या था, और प्रेडिक्शन में क्या क्या आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी
टोटल लेंथ थी टेस्टिंग डेटा सेट की, जहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, तो यहाँ पर हमारा साइज था 0.2, मतलब 20% डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रखा था, 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए गया था। तो 150 का 20% निकाल लीजिए आप, तो 30 रोज आएंगी जो आपकी टेस्टिंग के लिए जाएंगी। 30 रोज में ये 30 वैल्यूज हैं टोटल, जो कि इनकी कैटेगरीज हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में गिवन थी और ये आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है। तो अगर आप मिलाएंगे ना, तो ये 1 इनकी लोकेशन और इनकी वैल्यूज दोनों आपको सेम आनी चाहिए, तब तो आपका मॉडल बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% करेक्ट वाला। और कहीं पे कोई वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, तो वही चीज हम पता करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक में, कि कहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आ रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक देख देते हैं। आप देखेंगे इसने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया, एक्यूरेसी 100% है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही इजी डेटा सेट है, इस वजह से इस पे आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्प्लिटिंग का साइज, ट्रेनिंग का साइज काफी कम कर देंगे, तो इसकी एक्यूरेसी भी चेंज हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको 100% एक्यूरेसी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर टेस्टिंग का साइज बढ़ा दूं, मतलब ट्रेनिंग के लिए कम डेटा प्रोवाइड करूं, लेट्स से एक बार ट्राई करते हैं 40% पे। क्या एरर आ गई? CLF decision tree classifier, but fit X train, Y train. पता नहीं क्या था। ठीक है, 60 रोज हो गई प्रेडिक्शन पे, टेस्ट पे। और अब अगर हम इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, तो क्या एक्यूरेसी आ रही है? 0.98 एक्यूरेसी घट गई। यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है ना, यहाँ पर सब जगह 0 था, जो हमारी लोअर डायगोनल वैल्यूज में, और यहाँ पर अभी एक जगह 1 आ गया है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो मिसक्लासिफाई हो गया है। ये सारे जो बीच वाले होते हैं और डायगोनल पे होते हैं, वो एकदम एक्यूरेट क्लासिफिकेशन है, मतलब कि जो आपका टेस्टिंग में था वही प्रेडिक्शन में आया है। लेकिन ये एक पॉइंट है जो मिसक्लासिफाई होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी 0.98 हो गई है, ठीक है। तो हमने ये टेस्ट सेट को छोटा किया है या बड़ा किया है? बड़ा कर दिया, हमने ट्रेनिंग का कम कर दिया। हाँ टेस्ट सेट को बड़ा कर दिया, और मतलब अच्छा, ट्रेनिंग को कम ट्रेनिंग कम डेटा कर दिए, दिया। हाँ, ओके, ट्रेनिंग कम ठीक। कर दी, है ना। तो ट्रेनिंग कम करने के बाद हमारी रिपोर्ट में क्या क्या आ जाता है, रिपोर्ट में प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर वगैरह आ जाते हैं। इसके लिए हम लोग कंप्लीट मॉडल इवैल्यूएशन पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक मतलब 2-3 क्लास लगते हैं उसमें। तो उस पर हम सब बात करेंगे कि प्रिसिशन कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, रिकॉल कैसे कैलकुलेट हो रहा है, F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट, इनके सबके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं। और आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और वो वैल्यूज किस पे निकलेंगी, वो इस कंफ्यूजन मैट्रिक के बेसिस पे ही निकलते हैं। जितने भी ये फॉर्मूलाज निकलते हैं, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, सेंसिटिविटी, फलाना ढिमाका, जितने भी हैं सब कंफ्यूजन मैट्रिक के बेसिस पे निकलते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक में आप अभी इतना मान के चलिए, जो आपका डायगोनल है ये आपको बता रहा है, जैसे 23, 19 और 17, ये डायगोनल बता रहा है कि हमारे बिल्कुल सेम मैच हुआ है। जैसे अभी हम मैच कर रहे थे ना, 1 वाला 1 पे, 0 वाला 0 पे, एकदम सेम मैच हो रहे हैं। और जहां पर हमारा मिस क्लासिफाई हो रहा है, वो जो लोअर डायगोनल वैल्यूज और अपर डायगोनल वैल्यूज है, अगर वहां पर 0 की जगह कुछ और आ रहा है, तो वो सारा मिस क्लासिफिकेशन है। उसकी वजह से अगर मैं आपकी सिक्योरिटी वाले कंसर्न्स में बात करती हूँ ना, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, तो वहां पर फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स वगैरह के केस आ जाते हैं। मतलब कि अगर किसी को बीमारी नहीं है और आपका मशीन लर्निंग वाला मॉडल बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये पर्सन इज सिक, राइट, तो इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर दैट पर्सन। तो यहाँ सब में मशीन लर्निंग अगर फेल करता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम ये लोग सारी बातें कंफ्यूजन मैट्रिक्स या इससे रिलेटेड जो डेटा उसे पता कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री में ये एरर आई है। इज इट हाँ पता कर पॉसिबल? सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से पता कर लग जाएगा ना हमें कहाँ पर एरर आई है, मतलब किस अच्छा, हाँ, कैटेगरी हाँ, को उसने क्या बता दिया। हो हाँ। सकता है सेटोसा था और उसने वर्सिकल बना दिया, तो हमने टेस्ट वाले में देखेंगे, टेस्ट तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, और ये प्रेडिक्टेड हमारे मॉडल के परफॉर्मेंस पे है। तो ये मॉडल और क्या हम लोग परफॉर्मिंग कर रहा है, मैच कर सकते हैं। तो इस एरर के बेस पे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्गोरिथम ने कहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं की, या क्या रीजन रहा, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है?
हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि हम इसमें ज़्यादातर मशीन लर्निंग है, तो आप ना वो वाला जो हमारा फॉर लूप होता था या हमारे पाइथन का जो बेसिक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग था, उसमें तो हमें पता लग जाता था हम कौन से वेरिएबल हाँ में कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली जो एआई और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का डोमेन है ना, तो द मोर डेटा यू सप्लाई, द मोर बेटर रिजल्ट यू विल गेट। तो इस तरीके की बात चलती है। तो यहाँ पर ना हम मॉडल जो बना रहे हैं, मशीन लर्निंग में तो आप किसी हद तक आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं, क्योंकि सब फंक्शन है, मैथमेटिक्स है। डिसीजन ट्री में हमारे इफ एल्स रूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि ये एक्चुअली नीचे ये है ग्राफ, ठीक है। तो ये डिसीजन ट्री बना हुआ है, ये हमारा रूट नोड है, वो लेफ्ट में जाएगा तो ये होएगा, राइट में जाएगा तो वो होएगा। ये देख रहे हैं कि पेटल लेंथ आपकी, पहले से चलते हैं, पेटल विड्थ लेस देन 0.8 है तो लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पर जाके चेक करेगा कि उसने सेटोसा में उसको क्लासिफाई कर दिया है। जो हमारे ऑरेंज वाले हैं वो लीफ नोड्स हैं, मतलब वो हमारे प्रॉपर क्लासेस हैं। और ये हमारा, अगर फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि पेटल विड्थ क्या है, अगर उसकी लेस देन वैल्यू 1.75 है तो 2 ब्रांचेस में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट ब्रांच में जा रहा है कि राइट ब्रांच में जा रहा है, उसके बेसिस पे हम फर्दर डिसीजन ट्री के जो पैरामीटर्स होते हैं, इसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा यहाँ पर एसके लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में। एक क्वेश्चन है, तो ये डिसीजन ट्री है, ये मॉडल ने खुद बनाया है या हमने प्रोग्राम किया है? हमने यहाँ प्रोग्राम नहीं किया, ये हमने एसके लर्न से उठा लिया है पूरा। मॉडल ने खुद बनाया डिसीजन और ट्री हमने प्रोग्राम एल्गोरिदम किया। है मैं क्वेश्चन हाँ नहीं समझ जो पाई शायद। डिसीजन ट्री लीनियर रिग्रेशन की तरह का एल्गोरिदम है जो एसके लर्न लाइब्रेरी का पार्ट है। हमने उसको यूज किया ऑन द डाटा टू ट्रेन द मॉडल। अच्छा ओके ठीक है। है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन ट्री के अगर आप एक्चुअल वाले उस पे जाएंगे ना डॉक्यूमेंटेशन पे, तो आपको पूरा उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हम चेंज कर सकते हैं। मैक्स डेप्थ कितनी जाएगी, मैक्स डेप्थ यहाँ पे 2 लिया है, कहीं पर 5 लिया है, तो ये ट्रंकेट करें कि डिसीजन ट्री कितना लार्ज बनेगा, राइट। उसके बेसिस पे भी आपके जो एक्यूरेसी है उसमें डिफरेंस आएगा। ये तो रिग्रेशन का केस है, तो क्लासिफिकेशन में भी ऐसा ही होता है। तो ये देखिए इस तरीके का डिसीजन ट्री जो यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जांपल हमने भी इस तरीके का जनरेट किया है। तो ये आइरिस डेटा सेट पे ही है डिसीजन सरफेस। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिसीजन ट्री के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें और कौन कौन से पैरामीटर दिए गए हैं, हम उनको भी, मतलब कुछ तो बाय डिफॉल्ट सेट होंगे ना, उन बाय डिफॉल्ट को हम और जाकर चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका वो वाला पेज, हाँ ये वाला पेज खोल रही थी मैं। क्राइटेरिया क्या है, गिनी इंडेक्स है, तो गिनी इंडेक्स की जगह आप एंट्रोपी क्राइटेरिया लगा सकते हैं, लॉस लॉग लॉस क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो काफी सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आप एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एरर कैलकुलेशन के क्राइटेरिया होते हैं। फिर स्प्लिटिंग कौन सी है, रैंडम स्प्लिटिंग है, बेस्ट स्प्लिटिंग है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट कितने। तो ये सारे उसके फर्दर हाइपर पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। इम्प्योरिटी वगैरह बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हर एक एल्गोरिदम के अंदर अपने भी कई सारे पैरामीटर, अगर आप लीनियर रिग्रेशन चेक करना चाहते हैं ना, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन शायद चलते हैं चेक कर लेते हैं। लीनियर मॉडल सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये कल हमने कहीं मेंशन किया था। तो उसमें ये सारे चीजें हैं, इसमें थोड़े कम है क्योंकि y इक्वल्स टू x प्लस c में कितने ही पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो हो सकता है अपने जो m वैल्यू तो वही रहेगी, मतलब पैरामीटर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़े से कम है क्लासिफिकेशन से। तो इस सारे बहुत सारे कोफिशिएंट्स है, लैसो कोफिशिएंट है, मतलब एक एक के अंदर ना काफी सारी चीजें हैं। अब डिपेंड करता है आपको कौन से यूज केस पे काम करने को मिल रहा है और कितना डीप में जाने की जरूरत है, राइट। बट बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने को क्लियर हो गई है। अभी कोई डाउट है जितना अभी आज पढ़ा? आप इसकी डिटेल में ना जाके टर्मिनोलॉजी बेसिस पे बताइए। एक डाउट है इसमें ट्रेन और टेस्ट डेटा में, तो हाँ लाइक ट्रेन एंड टेस्ट डेटा वी आर गेटिंग सेम आउटपुट बट order of the output is different, so should it consider as a correct output or it's like variance in the data or model? क्लासिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं?
या किसी भी जनरल केस की अभी बात कर आपने रहे अभी आउटपुट एक दिखाया था ना उसमें, जो तो पैटर्न का कंपैरिजन। हाँ ये सो लाइक दिस वन लाइक सो वाइट prediction and test, so both are like output, like number of the output result is similar, but order of the these variable is different, variable or no, like रिजल्ट क्या ऑर्डर भी तो ठीक सेम है। है, आप नहीं, अगर जो भी अगर बोल रहे हैं मैं डिफरेंट है समझ रही हूँ, ये ऑर्डर तो क्लास है, उसको ये कंसिडर। क्लास है। हाँ, क्लास का ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो एक्चुअली ये आपका क्या पूछा आपने, आगे क्या था क्वेश्चन? नहीं, अगर आउटपुट सिमिलर है और ऑर्डर डिफरेंस है तो उसको मतलब करेक्ट कंसीडर करेंगे, या उसको मतलब ऑर्डर भी इनकरेक्ट है ये, सिमिलर ऑर्डर भी मैटर इनकरेक्ट। करता है यहाँ पे, ओके। ऑर्डर भी मैटर करता है क्योंकि आउटपुट तो सिमिलर ही आएगा क्योंकि हमने डेटा ही जिस डेटा पे ये टेस्टिंग रिजल्ट थे उसी डेटा पे हमने मॉडल को प्रेडिक्शन करवाया है, समझ रहे हैं आप? तो अगर हमारा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को आप देखेंगे तो एक्स टेस्ट को ही हमने डाला हुआ है वाई प्रेडिक्शन निकालने के लिए, यहाँ पर हमने एक्स टेस्ट डाला था ना, तभी तो वाई प्रेडिक्शन आया, और एक्स टेस्ट किसका पेयर था, वाई टेस्ट का पेयर था। तो हमने डेटा जो डाला है और जिस तरीके के डेटा पे मॉडल को ट्रेन किया था उसी तरीके का डेटा हमने टेस्टिंग के लिए डाला है, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, जो प्रेडिक्शन आएगा उससे मैचिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको टेस्ट में दिखेगा, एकदम अलग नहीं। जैसे अगर आप 0 1 2 वैल्यू है तो 5 6 7 नहीं आ सकता क्योंकि आपने ट्रेन ही नहीं किया उसके लिए मॉडल को। आप यही इसी तरीके का क्वेश्चन आप पूछ रहे थे या मैं गलत समझी हूँ क्वेश्चन? नहीं, उसमें आप जैसे 1 2 रिजल्ट सिमिलर है, ऑर्डर डिफरेंस है, तो इसको ऑर्डर राइट। डिफरेंस है। हाँ, ऑर्डर जैसे 1 0 2 है तो इसका 1 2 0 आ रहा है, और बाकी सारा हाँ हाँ, तो वो तो गलत होएगा, तो मतलब उसने गलत क्या ना। करा है कि हाँ गलत है, तो उसने क्या किया है कि आपका 1 नंबर पे अगर उसके फीचर मान लीजिए, आप इसको मान के चलिए, केवल इसको मत सोचिए, इसके करस्पॉन्डिंग एक और अपने दिमाग में 4 नंबर का एक एरे सोचिए जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 वैल्यूज थी, मतलब सेपल लेंथ सेपल वेट पेटल विथ उनको भी दिमाग में लेकर चलिए और उसके करस्पॉन्डिंग आपने वाई टेस्ट को रखा हुआ है और तब उसके करस्पॉन्डिंग आपका वाई प्रेडिक्शन आ रहा है, समझ रहे हैं? मतलब कि अगर हाँ, हमने ठीक है। लेंथ नापी थी सेटोसा की इतनी होनी चाहिए, तो अब उसने क्या किया है, वो सेटोसा ना करके उसे वर्सिकलर बता दिया प्रेडिक्शन में, तो गलती हुआ। तो वो ऑर्डर भी मैटर कर रहा है क्योंकि हमारा एक्स जो है वो तो सीक्वेंशियली ऑर्डर में अभी भी वही है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये चेंज नहीं हुआ है, ये आपका वाई टेस्ट हो गया मान लेते हैं अभी के लिए, और ये आपका एक्स है, कंप्लीट एक्स है, पर हम मान लेते हैं हमने 8 ही रोज दिए हैं टेस्टिंग के लिए और इसके 8 रोज का ये ऑर्डर है। मान लीजिए मॉडल प्रेडिक्ट करता है और यहाँ पर ये 0 की जगह कोई और नंबर दे देगा तो गलती हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो इसी कैटेगरी का फ्लावर था, ठीक समझ है। गए? हम्म, ओके। तो ये लेक्चर यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है वो देखते हैं। ये भी हो गया क्लासिफिकेशन सिनेरियो, मॉडल इवैल्यूएशन पे नेक्स्ट क्लास चलेगा, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्योंकि हम स्टार्ट कर देंगे और फिर वो खत्म नहीं होएगा, एक ही साथ डिस्कस करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। अच्छा, अगर अभी थोड़ा बहुत पाइथन रिफ्रेशर करना है तो हम लोग 10 15 मिनट उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो मैं ना पाइथन रिफ्रेशर कर देती हूँ इतनी देर में, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा, बहुत मशीन लर्निंग पढ़ लिया। अरे इसको कितनी भी बार पढ़ लीजिए आप, फिर भी जितनी बार भी पढ़ाने चलते हैं कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाता है, तो ये खत्म होने वाली चीज है नहीं, पढ़ने ये और जो आपने पढ़ाने के बाद प्रेजेंटेशन अभी जी बता शेयर करे जी थे जी, जया, हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर, हाँ। ये उसमें नहीं है एलएमएस में तो। वो हाँ उसमें नहीं है क्योंकि ये बड़ी सालों की मेहनत से बनाया गया है, तो इसीलिए मैंने इसको इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं कि वीडियोस में आपको सारा मिल जाएगा, पर ये मैं स्लाइड नहीं शेयर कर सकती। हाँ, ये 1 2 दिन का काम नहीं है, ये बड़े दिनों की मेहनत है। ओके। हाँ। हम्म। ठीक है, पाइथन पे जाते हैं, इसको मैं स्क्रीन शो पे डालती हूँ, स्लाइड शो पे। So Python is a programming language, or it's basically scripting language.
और यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। ऑलरेडी पता है, बस मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ। वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सब जगह यूज होती है। देन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल है, ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल है, पोर्टेबल है, एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेबल है, कम विद वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, ये भी सब पता है। अब और आगे चलते हुए हैं। इसके बाद पाइथन के एप्लीकेशंस वगैरह अपने को सब पता है, हम इन सब पे नहीं जाएंगे। और ओके, पाइथन आइडल वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं। अच्छा, पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास दो चीजें होती हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो पूरे कोड को एक साथ रन करता है और आपको एक साथ एरर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सी में होता था। और इंटरप्रेटर हमारे पास जो होता है उसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है और आपको हर लाइन के बाद एरर बता देता है। अब हमारे पास जब पाइथन आइडल जो इसका बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, हम वीएस कोड की भी बात नहीं करें, हाई फाई चीजों की बात नहीं करें, पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं ना, उसके साथ में भी एक पाइथन शेल आता है। तो वो पाइथन शेल में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम, देखा हुआ है आपने, मैं दिखा दूं। देखो दिखा देते हैं। आपने देखना देखा है? इंटरेक्टिव मोड मैं वो जो आइडल आइडल आता है ना उसका, वो आइडल कमांड लाइन बेस्ड मैं उसका। अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा शायद, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कंप्लीट स्क्रीन पे, तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो देख लेंगे। लोग कभी भी ये पाइथन शेल है। आप यहाँ पर जाकर केवल पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अगर आप आईडीएलई लिखेंगे तो आपको ये शेल ओपन हो जाएगा। ये शेल में आपके पास एक तो यहाँ पर है ये कमांड लाइन, ठीक है। यहाँ पर ये तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे रहा है। एक आप फाइल में जाके न्यू फाइल करते हैं और फिर यहाँ पर आप मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सकते हैं। तो ये हर एक लाइन के बाद रिजल्ट नहीं देगा, आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद रन करके कंपाइल करना होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से पाइथन का आइडियली वर्क करता है। और इसमें क्या है कि पूरा कोड तो कंपाइल हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको जो इंटरप्रेटेड की तरह ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरे कोड की एरर एक साथ लाइन नंबर डाल के बताएगा जैसे कि सी में आता था। यहाँ पे क्या होएगा, अगर पहली एरर मिलेगी वहीं पे कोड आपका एग्जिट कर जाएगा, freeze हो एग्जीक्यूशन एग्जिट जाएगा। कर जाएगा और एरर दिखा देगा। फिर आपने आगे की एरर्स को फिर से रन करोगे, फिर आगे की एरर दिखाएगा। तो इंटरप्रेटर की तरह ही काम कर रहा है, बट कोड एक साथ कंपाइल हो रहा है। तो थोड़ा सा मिक्स कर दिया दोनों चीजों को। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। इस पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइल्ड, इसमें यही सारी बातें की गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पाइथन वर्चुअल मशीन की भी बात की गई है, पीवीएम की, किस तरह से कोड कंपाइल होता है। तो इसका एक बाइट कोड बनाता तो है, पर उसको इतनी स्पीड से चेंज कर देता है हमारे रन वाले मतलब फाइनल आउटपुट पे इतनी जल्दी चेंज कर देता है कि आपको वो बाइट कोड दिखता नहीं है। जैसे कि सी में सेव हो जाता था, डॉट ओ करके एक फाइल सेव होती थी, उसमें होता नहीं है। और फिर आ जाते हैं डिसीजन कंट्रोल। तो डिसीजन कंट्रोल में हमारा बेसिकली सारा ये आ जाता है, फ्लो चार्ट वगैरह, इफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ कैसे लगता है, एल्स कैसे लगता है। अगर किसी की पाइथन फंडामेंटल्स थोड़े वीक होंगे ना, मुझे आप वहीं पर रोक दीजिएगा, मैं वही टॉपिक डिटेल में वहां से डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूंगी। अदरवाइज अभी मैं बस ओवरव्यू देते चल रही हूँ। राइट, सो पाइथन इफ एल्स में हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स हैं, एंड इसको हम फ्लो चार्ट मदद से समझते हैं तो बेटर समझ में आते हैं, इसलिए इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। नंबर डिफाइन कर दिया, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये बस वही फ्लो चार्ट है जो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है। और ठीक है, तो ये इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 ट्रू जाएगा तो नंबर इज पॉजिटिव नंबर, फॉल्स जाएगा तो बाहर कर एग्जिट कर जाएगा रन, और इसके बाद भी एग्जिट ही कर जाएगा। तो दोनों हमारे एंड पे आ जाते हैं। दूसरा है इफ एल्स वाला। तो इफ के साथ में एक एल्स भी लिखा हुआ है, तो जो हमारा डायरेक्टली एंड हो रहा था, अब हमने यहाँ पर एक और डाल दिया पैरेललोग्राम, जो कह रहा है इट्स अ नेगेटिव नंबर, और वहां पे कह रहा है पॉजिटिव नंबर। अच्छा, इसमें फ्लो चार्ट के कुछ फंडामेंटल्स होते थे, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये डिसीजन बॉक्स है, ये पैरेललोग्राम है, ये प्रिंट और इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है, ये आपका स्टार्ट एंड के लिए यूज होता है, बाकी फ्लो एरोज है। देन इफ एलिफ एल्स, तो 3-4 कंडीशन होंगी, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का बनता है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, थोड़े से इसमें एनिमेशन इधर उधर हो गए, बट आप समझ रहे होंगे। आगे आ जाते हैं, वाइल का क्या है। तो वाइल में आपका बेसिकली पाइथन में हमारे पास फॉर भी होता है और वाइल भी होता है, दोनों लूपिंग कंट्रोल होते हैं। तो वाइल जो आपका क्या करता है, जब तक कि आपकी ये टर्मिनेटिंग कंडीशन
ट्रू नहीं हो जाती है तब तक जितने स्टेटमेंट्स है उनको रन करता रहता है। ठीक है, तो हमारा वाइल जब तक ट्रू रहेगा, मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, अंदर का स्टेटमेंट चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बस उसी का फ्लो चार्ट है। यहाँ पे ये लूप आपको दिख रहा है, ये इतने स्टेटमेंट्स चला रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर लूप पे। तो फॉर इसमें थोड़ा अलग तरह से काम करता है पाइथन में। जो हमारे पहले के फॉर थे सी वगैरह में, तो उसमें हमारे पास कोई रेंज फंक्शन नहीं होते थे। हम फॉर लिखने के बाद आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस करते थे फॉर के अंदर। यहाँ पर हमारे पास थोड़े बेटर ऑप्शंस होते हैं फॉर में। फॉर वैल इन नंबर्स, जैसे अगर हमारे पास एक लिस्ट या एरे आप मान लीजिए, तो हमने इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम इसके साथ में, राइट। तो इसमें हमारे पास कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर और कुछ तरीके की चीजें आ जाती है जो आगे की स्लाइड्स में है, उनको हम पढ़ लेंगे वहां पे। तो फॉर लूप वगैरह इस तरह से इसमें काम करते हैं। फिर इसका एक फ्लो चार्ट है कि लूपिंग कैसे चल रही है। ये एरो शायद ये गलती से उल्टा लग गया है, नीचे होना चाहिए था। ठीक है, बाकी लूप तो वैसा ही है, जब तक जितने स्टेटमेंट फॉर के अंदर लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे। सॉरी, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, फिर लूप एंड हो जाएगा। फिर फॉर के अंदर अगर हम फॉर डालते हैं, नेस्टेड फॉर आते हैं, तो फिर उसका भी डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से लूप करता है कि अगर ये ट्रू है तो ये लूप, अंदर वाला लूप चलते रहेगा जब तक कि बाहर वाला लूप ट्रू है। फिर अंदर वाला लूप भी जब तक ट्रू है, इसके अंदर के स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। तो ये सब चीजें हम आगे देखेंगे कि लिस्ट क्या होती है, एरे क्या होता है, अभी आ रहा है आगे में। फॉर के साथ इफ को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फॉर के साथ हमने कंडीशंस लगा रखे हैं, अगर फॉर ये है और इफ कोई कंडीशन है, तो उस तरीके का फ्लो चार्ट ये हो गया। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक, पास और कंटिन्यू। सो ब्रेक होता है जब आपको वहां से ही ब्रेक करना होता है अपना एग्जीक्यूशन, देन वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट्स। कंटिन्यू का मतलब होता है वो इसी जगह से नेक्स्ट वाला इटरेशन को स्किप कर देगा, उसके आगे से चलना शुरू हो जाएगा। लेट्स से कि लेट्स से 100 है तो 100 वाला यहाँ पर ग्रेटर नहीं होगा। कंटिन्यू में शायद एग्जांपल है उसका, हाँ। ब्रेक फ्लोचार्ट सिर्फ इमीडिएट फॉर लूप को ब्रेक करता है या सारे नेस्टेड फॉर लूप को भी ब्रेक कर देगा? मान लो नहीं, लेट्स से नेस्ट फॉर के अंदर जिसके अंदर लगा हुआ है ना उसी को ब्रेक करेगा। नेस्टेड को नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, हाँ, मतलब जहां लगा हुआ है ना, अगर वो नेस्टेड में लगा हुआ है तो नेस्टेड को ब्रेक करेगा, अगर बाहर वाले फॉर लूप के अंदर लगा हुआ है तो बाहर वाले को ब्रेक करेगा। इसके एक दो क्वेश्चंस कर जो लेंगे। लूप चल रहा है उसको हाँ, ब्रेक करें। सिंग ओके, लेट्स से कि एक फॉर, ठीक। जैसे हम इस वाली प्रॉब्लम में आते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे प्रिंट के नीचे आप ब्रेक लगाएंगे ना, तो वो y की एक बार, x की वैल्यू एक बार लेगा, y की वैल्यू को एक बार लेगा, प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर वाला चलेगा, फिर से आएगा, फिर से लेगा। अगर आप ठीक थोड़ा है, सा हटा के इंडेंटेशन के नीचे यहाँ मार देंगे फॉर के नीचे ब्रेक, तो बस x की एक ही बार चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, उसके बाद बाहर निकल आएगा सीधा। ओके, कंटिन्यू में क्या करता है कि मान लीजिए हमारा ये एप्पल बनाना था, तो कंटिन्यू में अगर हमने यहाँ पर लगा दिया कि y इक्वल्स, इफ के साथ वो लगेगा, इफ y इक्वल्स टू बनाना, देन कंटिन्यू, तो क्या करेगा, ये वाली एंट्री को स्किप कर देगा, बाकी लूप चलते रहेगा आगे। जो एंट्री को आपको थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है फॉर टेस्टिंग और समथिंग, तो आप वहां पे कंटिन्यू लगा दीजिए, उस पर्टिकुलर एंट्री को रोक देगा, बाकी पूरा लूप चलने देगा। ठीक है, और पास क्या करता है, पास जस्ट आपको कंप्लीशन करने के लिए है कि अगर लूप में आपको आगे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सी कंडीशंस लिखनी है, तो आप पास लिख के छोड़ दीजिए, आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रेक बस कंटिन्यू हो गए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट ऑफ कंटिन्यू, पर डाला नहीं हुआ है। ओके अच्छा, टास्क दे रखा है, फाइन। एक्चुअली बहुत पहले की स्लाइड्स बनी हुई है, इसलिए करते करते थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे, काफी बिगिनर्स में एकदम, जो स्टूडेंट पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं उनके लिए, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो एक वहां पर मैं ऐड कर दूंगी एलएमएस में पाइथन का बिल्कुल बेसिक, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक लूपिंग, इन सबको टेस्ट करना है, तो वहाँ पे असाइनमेंट ऐड कर दूंगी। तो आगे चलते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स, लिस्ट, एरे, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन। बुलियन रह गया, बुलियन इसमें नहीं लिखा है, बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो इतने डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो अभी इनको कल करते हैं, कि अभी कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो कल हम लोग थोड़ा सा इवैल्यूएशन देखेंगे और उसके साथ में हो सका तो डेटा टाइप्स देखेंगे, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट वीक भी हमने सेव कर रखा है
पाइथन अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए एक बार जाते हैं अपना वो देख लेते हैं जो हमने फ्लो बनाया था क्या पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमें एक वीक हो जाएगा ये वाला वीक कंप्लीट करके, या क्या होएगा, एक वीक ही तो होगा ना ये वाला वीक कंप्लीट करके। ये फर्स्ट वीक है हाँ, और आई थिंक नेक्स्ट फर्स्ट वीक क्लास चल हमारी रहा है। थर्सडे को है या हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, तो कल छोड़ के हमें नेक्स्ट क्लास में फंक्शन एंड मॉड्यूल्स तक जानना है पाइथन में। तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में हम यहाँ तक चले जाएंगे, तो हमारा 2 वीक का सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ जाके हम थोड़े बहुत प्रोग्राम्स भी लिख लेंगे फंक्शन एंड मॉड्यूल्स वाले, जिनको थोड़ा डाउट वगैरह है। और अगर नहीं है तो हम मशीन लर्निंग को ही थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे नमपाई और पांडास, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में भी हमारा पाइथन जल्दी कवर हो गया तो नमपाई वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नमपाई में अक्सर से टाइम लग जाता है। नमपाई में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि बेसिक ऑपरेशन जो यहाँ लिखे हुए हैं, इंडेक्सिंग, रीशेपिंग, स्लाइसिंग वगैरह। इसके अलावा नमपाई का यूज आपका नमपाई के साथ एक और लाइब्रेरी आ जाती है साईपाई, और साईपाई का यूज हो जाता है आपका स्टैट समझने के लिए। तो वो नमपाई में भी उसके फंक्शंस है, साईपाई में भी फंक्शंस है। तो स्टैट्स तो इतना लंबा है कि है, मतलब वो अलग ही सब्जेक्ट ही है। तो हम उसमें से जितना जरूरत होगी ना उतना कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा विंडो अगर ज्यादा मिलता है तो हम स्टैट्स और लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स कवर करते हुए नंपाई को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। फिर पांडास हाँ वगैरह तो आ जाएगा। हाँ तो जय हम यही सोच रहे थे अभी कि आई थिंक यू आर राइट, हम ये जो वीक 2 है आई थिंक वी डोंट नीड टू स्पेंड, हम प्रीपोन कर लेते हैं इसको सो दैट लेटर ऑन एडवांस टॉपिक्स पे जब हम आएंगे वहाँ पे प्रोबब्ली शायद हमें मोर वी माइट टेक मोर टाइम, और कुछ अगर हमें और कंसल्ट करना होगा तो वी कैन यूज दैट टाइम। ठीक है, चलेगा, ओके। तो अभी Yep. क्लास को यही तक रखते हैं, No, ठीक है। फिर sure. मिलते हैं थर्सडे को। ओके, थैंक यू, Right. Thank you, Jaya. Thank you. Bye. बाय।